ओके। तो अब मैंने जो जूम सेशंस होती है ना, उनका नाम अगर एक्सक्लूसिव, अगर कुछ चंद लोगों से बात हो रही है और उनकी ओपिनियन के बारे में ज्यादा बात होगी, तो इसलिए मैंने इसका नाम ना पॉडकास्ट रख दिया है। तो कुछ खास नहीं है, वो एक जूम सेशन ही है जिसे जैसा कि आप यूज टू हो। तो मारिया, सिद्रा, किरण, हिना, हिरा, सारा, सुमेरा, कैसे हैं आप सब? और कंग्रेचुलेशन, पास किया आपने एग्जाम, और ज्वाइन किया मुझे, और बड़ी बात है। जी जी। थैंक यू बुशरा एंड मारिया, आप लोग तो काफी बिजी थे, फिर भी आप लोगों ने ज्वाइन किया। वो पास होने के बाद तो हाथ कोई नहीं लगता। No problem, ma'am. Anything मैं for you. You are the steps for our success, so we have to make a time for it. वैसे मारिया, तुम्हें तो वो भी रिकॉर्ड में एक टाइटल मिलना चाहिए अच्छा। कि मोस्ट, मतलब कोई सेशन या कोई कोर्स जो स्किप ना करता हो मैं ढूंढूंगा, इजंट इट? भले मैं भले आपके जितना आपकी सेशन है ना, आई कैन मतलब कि आई मेक नोट्स आउट ऑफ इट, आई हैव इट, दो आई टोल्ड यू कि इवन फॉर द थ्योरी आपने मुझे बोला था, आपने ले लिया कोर्स ना, आप रिवाइज करें। मैं कहा नहीं, आई वांट टू टेक इट मोर। तो आपने मुझे कहा क्यों? मैंने कहा तो आई विल कीप द टेम्पो, जैसे आपने कोई चीज किया आज, तो फिर ये एक टेम्पो रहेगा कि मुझे ये कंप्लीट करना है। तो दैट वाज फॉर थ्योरी, एंड देन फॉर वाइवा आई इवन टोल्ड यू कि जब तक मैं पास ना हो आई विल नॉट लीव यू। तो और बल्कि यही काफी दफा तो मैं कहती थी मारिया, मत लो कोर्स, मत लो कोर्स। आपने मुझे बोला था, ये वो जो एमसीपीएस वाले, जो एक्सेल वाले कोर्स, तो मुझे पता था पहले। मैंने कहा नो, आई वांट टू टेक इट। ओके ठीक है, बट इट वाज आई वांट टू से इट वाज वेरी फ्रूटफुल, एंड फ्रॉम थ्योरी, as I was with you from theory, so मेरा सारे basics from there, that's why I didn't want to miss anything. मारिया, थोड़ा सा इंट्रो अपना भी करा दें, लोग जो आपको जानते नहीं है। Acha, acha, acha. Okay, my name is Dr. Maria Ghulam Nabi, and I'm basically not a Pakistani. I am from Mauritius. So I've been in Pakistan for many years, like around 17 years. I did my FSC here, and I did my medical in Sindh Medical College, Karachi. I did my training in Dow Medical College, Civil Hospital, Karachi, and now I've completed my journey, I think so, in Pakistan. After so many years, I came here like at 19 years old, all alone in this country, don't know a word of Urdu. आपको Now अच्छी I'm आती going with है। now I'm going with the some word of like a full grip of Urdu, even though not 100%, and with two kids which are Pakistani. So basically, without this country, I wouldn't be here. So I wouldn't be at this point. Though I had a lot of such struggle going on, but I'm very thankful to this. I always say, after my country, it comes this country. So सेकंड I'm very सेकंड होम बन proud. गया है। आपका Sorry? सेकंड होम बन गया, आपके लिए Yes, तो I सेकंड said. होम बन गया। Yes, that's why. So basically, I've been following the steps of my father. He was हम्म also a student of Dow. हम्म So he's also saying he stayed here for 10 years, and he also told me that Pakistan is my second motherland. So it comes back to me also. Pakistan is my second motherland. So this is the background. But the thing is, like, it was a lot of struggle without any support to do training with kids and everything. Maybe everyone has their आपका struggle. आपका बेटा भी अभी छोटा ही होगा ना, 1-2 महीने का ही होगा, है ना? नहीं, मेरी एक बेटी 6 year और एक बेटी is 1 year. तो 1 year, अच्छा, दैट वाज कॉम्प्लिकेटेड बाय डायबिटीज। जी जी, gestational diabetes with full insulin, all these complication. So my first, this is my third attempt of talks. My first one I was just postpartum, like हम्म 1 month or 2 months postpartum. So I just went there. I sat in the in each room, and I was not basically talking a lot.
so I couldn't understand the format also. But second attempt, I prepared myself. I've listened to, but the thing is, like, I prepared myself in a different way. What I did, I listened. I didn't participate live because I didn't have the confidence to talk in Urdu and even to participate, even in English. So I was just taking the sessions, preparing my notes, because I always feel making your own notes from everywhere and making your own notes, you will retain it better. So I make my notes and I did that, and I went for exam. But to my surprise, I didn't clear it. Why? I told you when I did the second failure, I told you because I didn't present. I tried to find out my own fault. This is the key. The one who keep on repeating and don't find their key, where is their fault, तो कभी नहीं आगे नहीं जाएगा. अगर एक ईगो रखते हैं ना कि नहीं मैंने बोल दिया, मैंने फिर नहीं आगे नहीं जाएगा, वही के वही रहेंगे. तो फिर I started presenting in your course, bad or very bad, I don't know. So I tried my best, and no, you were very good, no doubt. I was quite worried because I didn't have a study partner. All my friends had. In such a way, like I was felt a bit left out in a way, because I thought okay, maybe study partner I will improve Urdu, especially counseling. No bad, give baby time. Maria, I will come back to you after talking to Bushra and Sure. Take your another successful mentor, successful students. So, Bushra, कैसी हैं आप? बुशरा किरण फ्रॉम मुल्तान. सुन सकती हैं आप मुझे? हेलो, अस्सलाम वालेकुम मैम. वालेकुम सलाम बुशरा. मुबारक हो पहले तो बहुत बहुत. थैंक यू मैडम, आपका बहुत थैंक्स मैडम, आपने मुझे बहुत इनकरेज किया हमेशा. मैडम आपकी सारी मेहनत है, मैं तो कुछ भी नहीं किया. नहीं, आपने जिन सर्कमस्टांसेस में तैयारी की है एक्सेप्शनल थे वो, और आपने फिर भी बहुत अच्छा पढ़ा और बहुत इम्प्रूव भी किया, नो डाउट. सो दैट्स व्हाई यू आर देयर. नहीं, लास्ट की प्रेजेंटेशन याद है, हम यकीन करें वो एक नाइट में होता, मैं सारी रात नहीं सोई थी उसके बाद. इतना सीवियर डिप्रेशन होता था उस प्रेजेंटेशन. वो जो लास्ट असेसमेंट थी आपके साथ? हाँ जी मैडम, वो जो था I was a bit rude, लेकिन कोई बात नहीं, देखो इम्प्रूव किया है तो दैट्स व्हाई टुडे यू आर हियर. वो मैडम, वो मैं सारी रात ही सोई थी, लेकिन सुबह जब मैं उठी तो एक डिटरमिनेशन था, आई विल डू इट. क्योंकि मैंने बच्चों को देखती थी, नहीं अब मैंने करना है, अब जो भी हो जाए इंशाल्लाह ताला जरूर करना है. बस मैडम, वो जो मैंने आपको लास्ट में प्रेजेंट किया था वो एक कॉन्फिडेंस था जो मुझे आया, लेकिन मिस्टेक मैंने सीखा भी बहुत. कुछ कहना चाहेंगी अपने आने वाले जूनियर्स के लिए? मैडम मैं उन्हें यही कहूंगी कि जो है ना, क्योंकि मैंने अपना एक फोकस बनाया था कि मैंने एग्जामिनेशन जरूर करना है और मैंने समरी जरूर प्रेजेंट करनी है. मेरा ये फोकस यही था. मैंने सारे वाइटर्स नहीं लिए, मैंने फर्स्ट 1 मिनट मिस्टेक नहीं की. मैंने मैडम कोई उसका ब्लड प्रेशर नहीं लिया अपने गाय वाले पेशेंट का. मैंने जल्दी एग्जामिनेशन में जो मेन चीजें थी, पॉइंट्स जो मैंने फोकस की थी, वो वही सीधा केस था मैडम. मैंने उसकी पैलरनेस, अशर, जॉन्डिस, लिफ नोड्स, थायराइड और मैडम एब्डोमेन एग्जामिनेशन में बहुत फोकस किया था. तो इस तरह मुझे लगता था एग्जामिनर खुश हुई थी उससे, क्योंकि मैंने पूछ लिया था कि आपको ब्लड प्रेशर का मसला तो नहीं है. मैं आपकी हूँ डिटेल में, आपके जो शॉर्ट केसेस है ना वो मैं डिटेल में पूछूंगी बुशरा आपसे, क्योंकि मुझे लगता है शॉर्ट केसेस को डिटेल में सुनना चाहिए सबको, स्पेसिफिकली जो फैब में अपेयर होंगे. और वी विल लव टू लिसन योर शॉर्ट केसेस बुशरा, मारिया, और आई थिंक सिद्रा ने भी ज्वाइन किया है. सिद्रा आप भी, आई थिंक सिद्रा अजीम हो ना? जी जी मैम. देखा था. थैंक यू मैम. सिद्रा काफी डिस्टॉर्शन है आपकी तरफ, बल्कि आ तो अब तुम तीनों की तरफ ही है. आई कैन अंडरस्टैंड, फैमिली टाइम भी है मैडम. अब है नो इट्स फाइन नाउ, अब बेहतर है. ओके. सिद्रा अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करा दो. बुशरा मुल्तान से है
निश्तर से ट्रेन हुई है, और मेरा अपना फैमिली मजला इंस्टीट्यूट है निश्तर, तो बुशरा से एक और भी ताल्लुक है। तो सिद्रा, आप कहाँ से ट्रेंड है? मैडम मैं बेसिकली सर्विसेज हॉस्पिटल लाहौर से ट्रेनिंग की हुई है मैंने। और उसके बाद मैं माइग्रेट कर गई थी इस्लामाबाद। मेरे हस्बैंड यहाँ होते हैं इस्लामाबाद में। टेक्सला में मैंने एज अ WMO ज्वाइन किया था आफ्टर माय ट्रेनिंग। फर्स्ट जब मैंने कौन से ईयर में? मैडम मुझे 2 साल हो गए। मतलब 2 years back you were in Texla? जी 2 years बैक मैं टेक्सला में आई थी। ओके, गुड। मैंने अपनी ट्रेनिंग की फर्स्ट अटेम्प्ट रिटर्न जो है वो मेरी स्किप हो गई थी क्योंकि मेरा थीसिस कंप्लीट नहीं था। उसके बाद मैंने जब रिटर्न दिया उस वक्त मेरा परपीरियम था, मेरी बेटी पैदा होने वाली थी। तो मेरे जिस दिन परपीरियम का लास्ट डे था उस दिन मेरा थ्योरी का एग्जाम था, फिर वो क्लियर हो गया। उसके बाद फर्स्ट अटेम्प्ट मैंने टॉक्स की जो दी थी वो मेरी स्किप हो गई थी, और उसकी रीजन मुझे पता चल गई थी। मेरी प्रिपरेशन इतनी अच्छी नहीं थी, मुझे एग्जाम का आइडिया ही नहीं था, जिस तरह मैंने तैयार किया हुआ था वैसे नहीं होना था वो। देन सेकंड अटेम्प्ट में मैंने आपका कोर्स ज्वाइन किया था। पहले तो मुझे सबने बड़ा डराया था कि जो है ना मैंने इस्लामाबाद का सेंटर रखा था इस दफा, क्योंकि मैं रहती यहाँ पे थी, मुझे ये फिजिबल था। मैंने रिटर्न लाहौर सेंटर पे दिया था। सबने मुझे कहा कि तुमने लाहौर सेंटर में रिटर्न दिया है, तुमने इस्लामाबाद का रख लिया, तो तुमने ऐसा ही ग्रुप ज्वाइन करना जो तुम्हें इस्लामाबाद में ही जो है ना वो तैयारी करवाए। और मैंने तो यहाँ होना नहीं था, मैंने अपनी मदर के पास जाके तैयारी करनी थी। मुझे ऐसा चाहिए था कि मैं जो है तैयारी भी परफेक्ट कर लूँ, और जो है मुझे जो है ना इस चीज का भी ना रहे कि मैंने इस्लामाबाद के अंदर रहकर तैयारी नहीं की, मैंने ये सेंटर ये सेलेक्ट फर्क किया। पड़ता है वैसे सिद्रा? डज दिस मैटर? मुझे तो नहीं मतलब कभी सुना मैंने इस किस्म का कोई। कहाँ रहकर तैयारी करते हो, कहाँ आप कौन से हॉस्पिटल में जाके तैयारी कर रहे हो, सारे पेशेंट एक जैसे हैं। फाइंडिंग्स आपको सारे 4 साल में जो ट्रेनिंग की होती है ना उसमें आपको फाइंडिंग पता चल जाती है। फाइंडिंग के बारे में भी वरी होने की जरूरत नहीं होती। जो डेफिशिएंसी मुझे अपनी अटेम्प्ट्स में लगी थी वो ये थी कि पिछले अटेम्प्ट में मैंने किसी के साथ प्रैक्टिस नहीं की थी, मैंने किसी को नहीं बोल के बताया था कि कैसे बोलना है कैसे नहीं। मैं अपने बोलने में डेफिशिएंट थी तब। जब मैंने आपका कोर्स ज्वाइन किया तो मैंने सबसे पहले यही फिगर आउट किया था कि मैं बोलूंगी तो मेरा एग्जाम पास होना है। इसलिए मैं कोशिश करती थी कि जहां मुझे मौका मिल जाता, जहां भी कोई कैंडिडेट स्किप हो जाता है, क्लास मिस कर देता है, या वो अपना जो है वो अटेम्प्ट जो है वो स्किप कर देता है ड्यू टू एनी रीजन, तो मैं टॉपिक वेल प्रिपेयर्ड रहूं पहले से। जहां भी मुझे लगे ना कि कोई नहीं है लेने के लिए तो मैं फौरन कह दूं मैडम मैं तैयार हूं, मैं कर देती हूँ। तो मैं यही करती थी। तो जहां पे भी इस तरह मुझे प्रेजेंट करने का मौका मिल जाता था, और मेरे मेरे एक इस बात का भी कॉन्फिडेंस आ जाता था कि मैं अगर अचानक से कोई टॉपिक आ जाता है मेरे पास और मुझे जो है ना वो प्रेजेंट करना पड़ता है, तो मैं उस वक्त मेरा रिकॉल कैसा होता है कि मैं उस वक्त रिकॉल कर पाती हूँ कि नहीं। चाहे मैं इस वक्त लेक्चर में जो है ना वो मिस्टेक्स करती थी या जो भी था, लेकिन उससे मुझे इतना पता चल जाता था कि ये जो टॉपिक मैंने प्रेजेंट किया है इसमें डेफिशिएंसी मेरी कितनी। तो बहुत फिर अच्छी एडवाइस दी है लेक्चर के सिद्रा। बाद अगर तो मेरा अच्छा लेक्चर गुजर जाता था तो मैं उस टॉपिक को जरा कम टाइम देती थी, और जिस टॉपिक में मेरी गलतियां ज्यादा होती थी उसको मैं दोबारा करती थी। इसका मतलब है कि मतलब वही एडवाइस करेंगी या वही ओपिनियन है आपकी जो लास्ट डे भी थी या यस्टरडे भी थी, जिन्होंने पास किया था, कि आप प्रेजेंट करें मैक्सिमम। मतलब आप खुद जी से प्रेजेंट करेंगे, आपको गलतियां अपनी पता चलेंगी, आप उन अपनी गलतियों को इम्प्रूव करेंगे तो सीखेंगे, बजाय ऐसे कि आप बस हाँ सुनते रहें दूसरों को। नहीं, ये बहुत अच्छी सुन एडवाइस है एक्चुअली बेसिकली सबको। मैडम हमने जब थ्योरी की हमने तब भी पढ़ा सुना यही कुछ करते रहे, लेकिन जब रिकॉल बोलने पे आते ना तो बोलना पड़ता है हमें सोच सोच के। तो जितना टाइम हम बोलने में लगाते हैं ना वो रिकॉल करने में, इस चीज की प्रैक्टिस नहीं थी मेरी कि जो है ना मैं रिकॉल करने में कितना टाइम लगाती हूँ। जब वो मैंने प्रेजेंट करना शुरू किया तब मुझे अंदाजा हुआ कि मुझे क्या चीजें प्रेजेंट करने में टाइम लगता है, किस पे मेरा टाइम वेस्ट हो जाता है। फिर मैंने उसी में प्रैक्टिस की। मेरा बेसिक मसला जो था वो बोलने का था कि मैं टाइम ज्यादा ले लेती थी, नॉलेज होता था लेकिन टाइम मैनेजमेंट नहीं होती थी। तो उसके लिए मैंने फिर मैक्सिमम प्रेजेंट करना शुरू किया था।
तो उसमें काफी मुझे हेल्प आउट हुआ। जब मैंने एग्जाम में प्रेजेंट किया तो मुझे पता था कि एग्जाम, अब मुझे ये फिगर आउट करना आ गया था उस वक्त तक कि एग्जामिनर अब मुझसे एक फॉर्मेलिटी के तौर पे एक स्टेप वाइज चीजें पूछना चाह रहा है, या वो चाह रहा है कि मैं डायरेक्ट लीडिंग क्वेश्चंस के लीडिंग आंसर्स दूं। तो अच्छा, ये मुझे फिगर सिद्रा, आई लव टू लिसन योर शॉर्ट केस। पहले मेरा ख्याल है आप 3 ही हो आज। आप 6 लोगों को इनवाइट किया था, मे बी बाकी लोग बिजी हो। कोई और भी है अवेलेबल जो 17 अक्टूबर को हमारे ग्रुप से पास हुआ है अभी सेशन में? मारिया, बुशरा और सिद्रा के अलावा नहीं है? अच्छा, तो मारिया, सिद्रा एंड बुशरा, अगेन थैंक यू, आप लोगों ने ज्वाइन किया और इतने प्रीशियस आप जो है अपने प्रो टिप्स दे रहे हैं फॉर यूर जूनियर्स, या मैं ये कहूँगी कोलीग्स जो अभी फैब में आएंगे, जो दोबारा देंगे एग्जाम। तो ये बहुत अच्छा आपका काइंड जेस्चर है। तो वी विल स्टार्ट फ्रॉम योर शॉर्ट केसेस। पहले सिद्रा से उनके गायनी और ओब्स के शॉर्ट केसेस हम सुन लेंगे कि उन्होंने कैसे अटेम्प्ट किया और पास किया। फिर मारिया से ले लेंगे उनके शॉर्ट केसेस के बारे में डिटेल, एंड देन बुशरा। ठीक है, उसके बाद अगर आप तीनों में से, आई कैन अंडरस्टैंड फैमिली टाइम है, तो जिनके पास टाइम हो तो बाकी केसेस पे क्विकली बता दें कि उन्होंने बाकी केसेस कैसे अटेम्प्ट किए। तो सिद्रा, टेल मी अबाउट योर गायनी केस। मेरा गायनी का शॉर्ट केस था वो ओवेरियन ट्यूमर पे था। उन्होंने पेशेंट बिठाया हुआ था और पेशेंट ने हिस्ट्री नहीं देनी थी। पेशेंट के साथ उनका एक जूनियर था जिसने हिस्ट्री प्रेजेंट करनी थी। आई स्टार्टेड फ्रॉम द बायोडेटा। वही 3 स्टेप जो थे आपकी हिस्ट्री के वो फॉलो किए थे बायोडेटा में। मैं फर्स्ट टाइम में उसका हिस्ट्री में इसको पकड़ के लेके जाना। फर्स्ट जो था उसका बायोडेटा लेने के बाद उसकी प्रेजेंटिंग कंप्लेंट था। उसकी प्रेजेंटिंग कंप्लेंट में ये था कि उसको जो है ना एब्डोमिनल डिस्टेंशन की कंप्लेंट थी और लोअर एब्डोमिनल पेन की। देन लोअर एब्डोमिनल पेन के डीडीज पहले रूल आउट कर लिए और उसके बाद मैंने एब्डोमिनल डिस्टेंशन की तरफ आई थी। और उसके बाद डिटेल जो मेरे पास ना बिल्कुल मैं टाइमर था तो टाइमर में मुझे अंदाजा हो गया था कि मेरी हिस्ट्री के पॉइंट्स ज्यादा होते जा रहे हैं, लेकिन मैं डीडीज तक पहुंच गई थी। तो जो एंड पे सोशियो इकोनॉमिक हिस्ट्री, पर्सनल हिस्ट्री और ये सारा कुछ था, ये मुझे गायनी के केस में स्किप करना पड़ा था। ये मैंने सोचा कि मैं अगर पेशेंट से डायरेक्ट एग्जामिनेशन के दौरान कर लूंगी तो इनफ होगा, तो वो मैंने छोड़ दिए थे। मैंने फिर एग्जामिनेशन करना शुरू कर दिया था। सिर्फ डीडीएस तक हिस्ट्री कंप्लीट करने के बाद मैं उठ गई थी एग्जामिनेशन के लिए। और जब एग्जामिनेशन किया तो उसका मिडलाइन फॉर्म मैथ्स था और कोई लिम्फेडिनोपैथी नहीं थी। जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन में भी मेन चीजें सिर्फ देख सकी थी कि लिम्फ नोड है या नहीं और पैलर देखा था। बीपी और टेम्परेचर और ये पल्स वगैरह वाइटल्स लेने का टाइम नहीं था तो वाइटल्स नहीं। उसके बाद ये एग्जामिनेशन करने के बाद मैंने उसी के दौरान पेशेंट से थोड़ा बहुत स्मोकिंग और रिस्क फैक्टर्स जो थे मैथ्स के वो मैंने पूछ लिए थे कि कौन से हैं, और उन रिस्क फैक्टर्स के बाद फिर मैंने समराइज कर दिया। तो इसमें टाइम अप हो गया, यानी कि टाइम मैनेजमेंट इतनी फास्ट रखने के बावजूद भी जो है ना वो इतना ही टाइम था कि मैं टू द पॉइंट सिर्फ क्वेश्चन करूं, डीडीज बनाऊं और उसके बाद जो है ना एग्जामिनेशन में टू द पॉइंट करके समराइज करता हूँ। समराइज किया था, समराइज में ही उसने उसके बाद डीडीज पूछे। डीडीज में उसको मैंने मिडलाइन समरी कर सकती हैं, समरी बता सकती हैं? कैन यू रिकॉल योर केस समरी? मैडम मेरी केस समरी थी, पेशेंट थी पैरा 5+0 थी, प्रीवियस एसवीडीज और लोअर एब्डोमिनल पेन थी उसको 5 मंथ से, और एज उसकी थी 45 इयर्स ऑफ एज। ओके। हाँ जी, और उसकी जो है ना 3 मंथ से उसको वेट लॉस का अंदाजा था, लेकिन उसको इतना अच्छा वेट लॉस नहीं होता, उसने नहीं बताया था। शी सेड के बस में मुझे इतना अंदाजा है कि मेरे पहले से कपड़े थोड़े से खुले हो गए, लेकिन मेरा वेट मैंने ना किया है ना मुझे पता है कि कितना कम हुआ। और इसके अलावा उसका रेगुलर साइकिल था, मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री कोई इतनी खास सिग्निफिकेंट नहीं थी, ओवुलेशन इंडक्शन की हिस्ट्री थी उसकी, और इसके अलावा उसकी कोई सिग्निफिकेंट हिस्ट्री सीए की तरफ नहीं थी, ना ओवेरियन सीए की तरफ उसने कोई डेफिनेटिव हिस्ट्री नहीं दी थी, सिर्फ लोअर एब्डोमिनल पेन, एब्डोमिनल डिस्टेंशन। तो फिर आपको कैसे पता चला 45 पे ये जो फर्म मैस है ये मैलिग्नेंट है, ओवेरियन है? मैडम वो जब नेक्स्ट स्टेशन लिंक पे गए थे ना
तो उनसे ट्यूमर मार्कर मांगे तो उन्होंने ट्यूमर मार्कर में मुझे LDH रेज दिया था 3 और CA 1 to 5 44 दिया था उसका। जब RMI कैलकुलेट किया था ना तो वो 200 प्लस था, तो उसमें उसको फिर बताया कि ये जो है ना मेलिग्नेंसी की तरफ इसका RMI है। मैं एक मिनट तो एक मिनट एक मिनट सिद्रा, मैं समझी नहीं। देखो, हम हर मैथ्स के तो ट्यूमर मार्कर नहीं मांगते जब तक हमारा हिस्ट्री एग्जाम बेस्ड डायग्नोसिस नहीं बनेगा ओवेरियन मैथ्स। तो आई जस्ट वांट टू लिसन कि आपने हिस्ट्री एग्जामिनेशन करने के बाद आपके पास क्या प्लस पॉइंट्स थे कि ये एक ओवेरियन मैथ्स है और वो भी मेलिग्नेंट। मतलब मैडम शॉर्ट प्लस पॉइंट ये था आंसर कि था। एक सिम्टम प्लस पॉइंट दो डीडीज की तरफ उन्होंने मुझसे पूछा था कि पहले मैंने उनको एक डीडीज में फाइब्राइड बताया था, उन्होंने कहा कौन से पॉइंट फाइब्राइड की तरफ सजेस्टिव है, उनको बताया था कि मुझे मिड लाइन मैस मिला है फॉर्म कंसिस्टेंसी का, इसलिए इसको मैंने फाइब्राइड की तरफ किया है। सेकंड उन्होंने ओवेरियन ट्यूमर का पूछा कि वेरियन ट्यूमर आपने इसको क्यों कहा था, तो मैंने उनको बताया कि पेशेंट के वेग सिम्टम्स हैं, वेट लॉस की हिस्ट्री, ओवुलेशन इंडक्शन उसका रिस्क फैक्टर है, उसकी हिस्ट्री है। इसके अलावा सिग्निफिकेंट और हिस्ट्री नहीं है और पेशेंट की फैमिली हिस्ट्री भी किसी CA की नहीं थी। फिर उन्होंने कहा कि जो है ना इसका जब मैंने मैंने अल्ट्रासाउंड पहले मांगा, अल्ट्रासाउंड पे उन्होंने मुझे ना सिस्ट दी थी। ओके ओके, दे हेल्प यू एक्चुअली। मैं बताऊं आपको, इधर उन्होंने आपको हेल्प किया है ओवेरियन पे लाने के लिए। जी उन्होंने मुझे, मैंने जब अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन पेल्विस मांगा था तो उन्होंने मुझे लेफ्ट साइडेड सिस्ट दी विद सॉलिड कंपोनेंट। लेट मी टू और ऐड लेट मी टू ऐड आपको पता है ये आपको हेल्प क्यों मिली? क्यों? मतलब क्यों मिली? क्योंकि एक तो टाइम मैनेजमेंट आपकी अच्छी थी, यू वर कॉन्फिडेंट, आपने ये केस काफी दफा प्रेजेंट किया, इवन विद मी भी आपके 2 जी केसेस थे। और दूसरा ये कि आपने फर्म मैस जो कि 45 पे है, फाइब्राइड ही मोस्ट कॉमन होता है और कोई मतलब हिस्ट्री भी नहीं है, तो हिस्ट्री क्लिनिकल बेस्ड आपने फाइब्राइड ही बनाना था। दैट वाज जी लॉजिकल इनफ। तो यहाँ जी तक मैं आल्टो के, उन्होंने हाँ। पहले मुझसे पूछा ना डिफरेंशियल्स, तो मैंने उनको डिफरेंशियल बताया, तो उन्होंने कहा कि कौन से पॉइंट्स आपके फाइब्राइड की तरफ हैं, तो उनको फिर मैंने बताया कि ये रिप्रोडक्टिव एज है उसकी और फर्म मैस है एग्जामिनेशन पे और जो है ना इसलिए मैंने इसको फाइब्राइड कहा है। फिर उन्होंने कहा कि और क्या डिजीज है, फिर उन्होंने उनको बताया कि कैन बी ओवेरियन मैस और बिनाइन भी हो सकता है, मेलिग्नेंट भी हो सकता है। तो शी सेड के क्या पॉइंट्स हैं आपके जो ओवेरियन की तरफ जा रहे हैं। फिर मैंने उनको बताया कि ये पॉइंट्स इसके कि ये वेग सिम्टम्स हैं, लोअर एब्डोमिनल पेन है और डिस्टेंशन है, तो ये सारे और वेग HM सिम्टम्स भी नहीं है, ओवेरियन। और HM भी नहीं है। हाँ जी। और और तो और फिर और उन्होंने और और हिस्ट्री बड़ी सडन है, क्रॉनिक नहीं है। HM जी फाइब्राइड की बड़ी हाँ लंबी हिस्ट्री होती है। जी। फिर उसके बाद उन्होंने मुझे कहा कि अच्छा अब चलिए आप बताएं कि आप इन्वेस्टिगेशंस कौन सी कराएंगी। तो आफ्टर बेसलाइन इन्वेस्टिगेशन फिर मैंने उनसे जब एब्डोमिनल स्कैन मांगा तो उन्होंने मुझे सिस्ट दे दी और सिस्ट फिर जब इजी उन्होंने हो दी तो गया, उसमें फिर इजी हो कंप्लेंट गया। था। जी मैंने कहा फिर इजी हो गया ना, अब तो केस हाँ स्मूथ हो उसके गया। बाद easy हो गया। उसके बाद मैनेजमेंट पे उतना उन्होंने इतना टाइम नहीं लगाया। बेसिकली शी वांटेड कि मैं एक डायग्नोसिस बस बना दूं और उसके बाद मैनेजमेंट पे वो बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा रहे थे। मेरे किसी स्टेशन पे भी उन्होंने मैनेजमेंट पे इतना टाइम नहीं लगाया। जो बेसिक डायग्नोसिस बनना था ना सिर्फ वहां तक टाइम लगा। इन्वेस्टिगेशंस कौन सी करानी है और कौन सी नहीं। जब मैं डायग्नोसिस पे पहुंच गई थी उसके बाद उन्होंने जो है ना जल्दी जल्दी 2 मिनट के अंदर जो है ना बेसिक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है ना वो एग्जामिनेशन के पूछे थे, उसके क्या बात सॉरी है। मैनेजमेंट के पूछे थे। ओब्स का केस बता दें अब। उसका फिर उन्होंने फॉलोअप पूछा और उसके बाद उन्होंने कहा कि आप इसका करोगे क्या, तो उसको बस ये मल्टीडिसिप्लिनरी टीम अप्रोच करवा कर उसका जो है ना मैंने वो करवा दी थी रेडिकल सर्जरी, स्टेजिंग लेप्रोटमी के स्टेप्स पूछ लिए थे। उसके बाद उन्होंने कहा कि आप फॉलोअप बताओ कैसे करोगी, फॉलोअप बता दिया था और उसके बाद टाइम हो गया। मतलब शॉर्ट केस में इतना ही था सिर्फ। अब ओब्स का शॉर्ट केस क्या था? शॉर्ट केस में ग्रेविटा 3/2+0 थी और प्रीवियस एसपीडी थी और उसका जो है ना लाइव इशू कोई नहीं था। एक उसका बेबी जो था वो 5 मंथ्स पे नमूनिया की वजह से एक्सपायर हुआ था और एक बेबी जो है ना उसका 8 मंथ्स पे आईयूडी हो गया था और उसमें उसको बताया गया था कि प्री क्लैम्शिया हुआ है और उसके बाद उसको जो है ना आईयूडी हुआ। तो अभी जो आई थी उसकी प्रेजेंटिंग कंप्लेंट थी कि उसको ग्रोथ नहीं हो रही, उसको किसी ने बताया था कि आपकी ग्रोथ नहीं है। आपको स्क्रीन नजर आ रही है?
उससे जब मैंने उसकी डिटेल पूछी प्रीवियस IUGR की, तो उसको पिछला डिटेल इतना नहीं पता था। उसने कहा कि बस 8 महीने में गया ना, तब मुझे पहले दफा ऐसा हुआ था, तो बच्चा जो है ना वो पेट में बहुत हो गया था। तो अभी उस वक्त मेरा BP तेज हुआ था, तो मैंने उससे पूछा कि इस दफा आपकी BP तेज होता है कि नहीं होता, तो उसने कहा कि इस दफा भी मेरा हो जाता है कभी कभी, लेकिन मैं जो ना उसके लिए मेडिकेशन ही रेगुलर लेती, मैं ऑफ एंड ऑन जब तेज होता है सिर्फ तब लेती हूँ। तो मैंने उससे पूछा कि आप इसके अलावा कौन सी लेती हैं, तो शी टोल्ड के वो लोप्रिल लेती है। उसके बाद जब मैंने उसका एग्जामिनेशन किया तो मैडम उसकी जो उसको श्योर ऑफ डेट थी 23 मार्च आई थिंक उसने मुझे बताई थी LMP, तो वो 29+5 पे थी, फंडल हाइट भी उसकी 29 की थी। तो एग्जामिनर ने यहाँ मुझे थोड़ा सा कंफ्यूज करने की कोशिश की थी। मैंने जब उसकी फंडल हाइट चेक की तो उसने मुझे कहा कि कितनी फंडल हाइट आ रही है आपकी, मैंने कहा 29 वीक्स। तो एग्जामिनर ने थोड़ा सा अजीब से एक्सप्रेशन दिए थे पहले, मुझे लगा शायद मैंने गलत कर दिया या कुछ और होगी, तो मैंने उनके सामने फिर रिपीट फंडल हाइट की। उसके बाद कहती हैं ओके, तो उनको मैंने दिखाया कि मैडम ये देखिए ये 29 वीक्स तक ही इसकी फंडल हाइट है। फिर उसके बाद उन्होंने कहा ठीक है। उसके बाद उसको मैंने जब मैं अच्छा मैडम पेशेंट ने मुझे बिल्कुल नहीं बताया, मैंने हालांकि उससे ट्रीटमेंट डिटेल पूछी थी, उसने मुझे नहीं बताया कि वो क्लेक्सिन भी लगाती है। और जब मैंने उसकी एब्डोमिनल एग्जामिनेशन किया तो आई नोटिस्ड कि उसके ना एब्डोमेन पे थोड़े से मार्क्स हैं, तो इंजेक्शन मार्क्स थे। तो मैंने उनसे पूछा कि ये निशान किस चीज के, आप क्या लगाती हैं यहाँ पे, ये रैश है या आप कुछ लगाती हैं? तो उसने कहा कि मुझे तो टीके लगते हैं क्लेक्सिन के। तो बिल्कुल मैं सारा केस कंप्लीट कर चुकी थी, पीडर एडिमा हर चीज में देख चुकी थी, उसके हाइपरटेंशन के साइन सिम्टम्स कॉम्प्लिकेशन सारी देख चुकी थी। लेकिन एंड पे जब मैंने समराइज करने से पहले उससे मुझे अचानक ही क्लिक किया कि इसके पेट पे मैंने निशान देखे, तो मैंने इसका नहीं पूछा इससे, तो मैंने जब उससे पूछा तो उसने कहा मुझे क्लेक्सिन लगता है। तो उसके बाद मैंने फिर जब समराइज किया तो इस स्टेशन पे ज्यादा क्रॉस क्वेश्चनिंग नहीं हुई थी, जस्ट समराइज करके तो खत्म हो गया था। उसको बता दिया था कि अभी फिलहाल एडिक्वेट फंडल हाइट है उसकी, लेकिन पेशेंट इज हाई रिस्क फॉर द IUGR। जब इसके लिंक स्टेशन पे गई थी तो उन्होंने सारी डिटेल पूछ के डीडीज पूछे, उन्होंने ट्रीटमेंट का पूछा, उन्होंने पूछा क्लेक्सिन कब बंद करोगी, इसकी प्री डिलीवरी और पोस्ट डिलीवरी लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन की मैनेजमेंट पूछ ली। फिर उन्होंने पहले मुझे कहा कि इसको कैसे तुम प्रोग्रेस करोगी, उसको मैंने बताया कि अभी तो फंडल हाइट बिल्कुल ठीक है और लाइकर वॉल्यूम मुझे क्लिनिकली रिड्यूस लगा था, तो उन्होंने भी मुझे AFI 4 सेंटीमीटर दिया था। तो उनके उसके सीरियल ग्रोथ स्कैन करवाए और उसके बाद उनको कहा कि मैं इसका डॉपलर करवाऊंगी। उन्होंने कहा कि अच्छा डॉपलर इसका हुआ है, डॉपलर नॉर्मल है। तो नॉर्मल डॉपलर पे भी मैंने उनको कहा कि मैं ग्रोथ स्कैन करवाती रहूंगी और इसको टर्म तक लेके जाऊंगी। फिर उन्होंने कहा अच्छा चलें ठीक है, पेशेंट आपके पास 36 वीक्स पे आ गया है, अब उसकी SD रेशियो रेज्ड है, तो अब आप इसका क्या करेंगी? तो फिर मैंने उनसे कहा कि मैं इस पेशेंट का 36 वीक्स पे है, क्योंकि एज ऑफ वायबिलिटी पे है, तो आई विल डू MCA और उसके बाद मैं इसको जो है ना एज सुन एज पॉसिबल डिलीवर कराऊंगी, क्योंकि पेशेंट का SD रेशियो रेज्ड है। तो MCA के अकॉर्डिंगली अगर वो एबनॉर्मल होगा तो अर्ली डिलीवरी होगी, अगर MCA नॉर्मल है तो मैं इसको प्रोलॉन्ग भी कर सकती हूँ 37 वीक्स तक। तो उसके बाद उसने ओके कर दिया। ठीक है, एक्सीलेंट। तो वैसे ही मैं ऐड कर रही हूँ क्योंकि मेरा मकसद ये है कि बाकी लोग सीखें, और मैं हरगिज किसी को भी डिस्करेज करना नहीं चाहती, और हरगिज भी 100% कोई परफेक्ट नहीं होता, सबसे गलतियां होती हैं। आई विल जस्ट ऐड के 36 वीक्स पे MCA कराना होता है, 37 पे कराना होता है अगर SD रेशियो रेज हो। नहीं, SD रेशियो अगर रेज हो तो कराना ही नहीं होता है वैसे। मैडम जब हम कर रहे थे IUGR तो तब मैंने, मेरा ख्याल है लास्ट लेक्चर ही IUGR पे ही था, मैंने प्रेजेंट किया था, तो तब उसमें मेरा ख्याल है यही किया कि 32 के बाद हमने जब भी SD रेशियो रेज्ड आएगी हमने MCA एक दफा करा लेना है। जस्ट एक मिनट, मेरे साथ सेशन था उसमें भी ये बात डिस्कस हुई थी, बुशरा सिद्रा तुम दोनों ही थे, ठीक है? हाँ जी मैंने हाँ, तो बाकी लोग क्या कहते हैं, मेरा ओपिनियन ये है कि SD रेशियो ही अगर खराब है और इफ एवरीथिंग इज ओके, MC की जरूरत ही नहीं है। MC की जरूरत तब होती है जब आपका अम्लाइकल आटे डॉपलर सही आ रहा हो और IUGR हो, उसमें 37 पर डिसीजन लेने के लिए यू हैव टू ऐड MCA। दिस इज माय व्यू, आई कैन बी रॉन्ग। सिद्रा था ना देख मैडम एंट्री थी, मेरे भी यही दो सोचे थे, लेकिन मैंने ये नहीं खाई थी, मुझे उन्होंने यही पूछे थे कि डॉक्टर सिद्रा जी से पूछें ये अगर आप वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अभी यहाँ रुक जाओ, जस्ट गिव मी वन।
मुझे तब तक ये बताएं कि अब रिसेंट जो 2023 की रिकरेंट मिसकैरेजेस की जो गाइडलाइन है उसमें लोप्रिन ये और हेपरिन कब तक लेके जाने हैं? आप में से पता है किसी को? लोप्रिन तो मैडम टिल डिलीवरी, और हेपरिन? हेपरिन जो है वो 1 वीक बिफोर डिलीवरी जो है वो करते, वो सॉरी 1 वीक कह रही हूँ, जो हेपरिन है वो तो हमने 12 आवर्स बिफोर एसवीडी और 24 आवर्स बिफोर सी सेक्शन करनी होती है ना बंद। कोई और कुछ कहेगा? तुम लोगों ने शायद स्किप की होगी अभी गाइड, थोड़ा रिसेंटली चेंज हुई है गाइडलाइन। क्योंकि एक और शॉर्ट केस भी था ना, उसमें मैं 34 वीक के लॉक स्टॉप कराई थी और प्रोफिलैक्टिक डोज थी मैंने तो 34 पे, यस यस यस, रिसेंटली इट इज 34। ठीक है। अच्छा ये जस्ट मैं अब आपके साथ ही देख लेती हूँ ताकि अब ये देखो चीजें तो, लर्निंग तो आप बन गए हो कंसल्टेंट, ये लर्निंग को नहीं एंड करना। हम गलतियां अभी भी करेंगे, ठीक है, हमने अभी भी खुद को इम्प्रूव करना है और बस ये इम्प्रूवमेंट इज पार्ट ऑफ आवर लाइफ नाउ। ठीक है बुशरा, सो बुशरा हेयर वो यार यहाँ देखें, रिपीट अल्ट्रासाउंड, अगर ये नॉर्मल है, इजंट इट, और नॉर्मल के नीचे यहाँ कहीं आपको नजर आ रहा है एमसीए, इजंट इट, बट जहां एसटी रेशियो ज्यादा हुई, कैन यू सी एनी एमसीए हेयर हेयर? तो एसटी रेशियो अगर ज्यादा हो तो एमसीए कराने की जरूरत नहीं है बाय डिफॉल्ट। आपने वैसे भी 37 पे ही डिलीवर करना है, मतलब एमसीए की बेस पे नहीं टाइम ऑफ डिलीवरी चेंज हो रहा। ठीक है। ठीक है मैडम, ठीक है। और बाकी 34 पे लोप्रिन और हेपरिन अगर एपीएलएस है तो बंद किया जा सकता है, यू कैन कंसीडर अकॉर्डिंग टू द रिसेंट रिकरेंट प्रेगनेंसी गाइडलाइन। ठीक है। चलें बाकी अब सिद्रा सिद्रा, आपको पता है आप क्यों पास हुए? व्हाट वाज योर प्लस पॉइंट इन दिस ओब्स केस? ये सबके लिए मिशेल राह हो सकता है कि हम सबको 100% ठीक होना जरूरी नहीं है, आप गलतियां करके भी पास हो सकते हो, है ना? लेकिन जी। क्या नहीं करना, क्या नहीं करना, टाइम मैनेजमेंट अच्छी करनी है, बोंगियां नहीं मारनी, टू द पॉइंट, पहले या दो सेंसिबल डायग्नोसिस बनाने हैं। ठीक है। और अगर मिस भी हो जाए ना चीजें, जैसे इनसे एपीएलएस मिस हुआ शायद, बट ये इतनी कीन ऑब्जर्वर थी, इन्होंने वो जो स्कार थे या वो जो इंजेक्शन जो मार्क्स थे वो उन्होंने अननोटिस जाने नहीं दिए, इन्होंने वहां से पकड़ा इसको। मे बी थायराइड निकलता और थायराइड बड़ा निकलता, मे बी हिस्ट्री पे मिस होता, अगर थायराइड ये देखती तो उसको अननोटिस ना करती बल्कि उसके बारे में भी क्वेश्चन करती, और मे बी उनको पता चल जाता कि थायराइड इज अ रीजन ऑफ रिकरेंट प्रेगनेंसी लाइसिस। तो ये आप सबके लिए एक प्रो टिप है कि एग्जामिनेशन में आप अपनी जो दोनों आंखें हैं वो बल्कि उनको चारों आंखें बना लें और उनको खुला रखें, उनसे भी आपको बड़े हिंट मिलते हैं। और ये जो पूरा ओब्स का केस है ना, इसमें हिस्ट्री इतनी अच्छी नहीं है जिस तरह इनको इन्होंने अपनी कॉमन सेंस यूज किया है, मतलब सिर्फ लोप्रिन पूछा है तो उनको पता चल गया किधर जा रहा है केस बैड ओब्स के बैकग्राउंड में, वरना बैड ओब्स की हिस्ट्री तो जाइंट हिस्ट्री है। लोग इसी हिस्ट्री पे फेल हुए हैं ना फेल, क्योंकि इतनी लंबी हिस्ट्री थी कि टाइम मैनेजमेंट नहीं हुई, इतने रिस्क फैक्टर्स थे। मुझे जो बाद में जो लोग रह गए उनका भी यही फीडबैक था कि मैडम मैडम इसमें थोड़ी सी एक चीज मैं ऐड करूंगी कि जब पेशेंट ने मुझे कहा ना कि मैं डिग्री बेबी ग्रोथ के सिलसिले में आई हूँ, तो मैंने उनसे पहले ही पूछ लिया था कि आप मुझे पिछली प्रेगनेंसी या इसमें कुछ भी और बताना चाहती हैं तो बताएं। तो उस पेशेंट ने मुझे एक ही लाइन के जवाब में सारी पिछली हिस्ट्री दे दी थी कि पिछली हिस्ट्री में मेरा आईयूडी हो गया, प्री क्लैम्पशिया हो गया, वो बच्चे का मुझे ग्रोथ ही कम बताई, लेकिन कोई रिकॉर्ड नहीं था मेरे पास, सारा कुछ उसने बता दिया मुझे खुद ही। सिद्रा वो 1 गोल्ड मिनट याद है? दो दफा केसेस में डांट पड़ी थी आपको इसी पे कि लेट पेशेंट वो टू स्पीक, और आपने अच्छा यूज किया इसको, बहुत अच्छा जी। सो जबरदस्त। ओब्स का केस भी और गायनी का भी, और इतनी ही कॉमन सेंस होनी चाहिए पास होने के लिए, 100% नहीं ठीक होना। ठीक है, मतलब आइडियल तो है लेकिन ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है, एरर हो जाते हैं। तो ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छी एग्जाम्पल है जिनको ये लगता है कि जब तक हम 100% ठीक नहीं होंगे हम पास नहीं हो सकते। आपको रीजनेबली सेफ होना है, आपको एक एवरेज और मीडियम कैंडिडेट होना है, और आप ही ने फिर पास होना है। ठीक है। सो थैंक यू सिद्रा। सिद्रा बाकी शॉर्ट केसेस के अलावा क्विकली मुझे अपने एक दो और जो टॉक्स के सेशंस हैं वो बता दें,
जो आप बताना मैडम चाहें, जो आपने बहुत अच्छे इसका अटेम्प्ट किए। स्टेशन ना हमारा एंग्री पेशेंट वाला वो बता देती हूँ उसमें, जो कि मुझे बिल्कुल नहीं लगता था कि वो पास करेगी। लेप्रोस्कोपी पेशेंट की हुई थी, बीटीएल हुआ था, और उसके बाद जो है ना पेशेंट दोबारा प्रेगनेंसी के साथ आई थी। पेशेंट वॉज वेरी एंग्री कि 25 दिन पहले मेरा ऑपरेशन हुआ है, 13 दिन पहले मुझे वो पीरियड्स भी आए हैं, लेकिन फिर भी मेरी प्रेगनेंसी हो गई है। तो मतलब उसकी हिस्ट्री बहुत अजीब सी थी कि मुझे खुद समझ नहीं आया था कि 13 दिन पहले अगर उसको पीरियड्स आए हैं तो 13 दिन के अंदर प्रेगनेंसी का पॉजिटिव कैसे आ जाती है। तो वो खैर किसी तरफ डायग्नोसिस नहीं उसका जा रहा था, लेकिन उनका बेसिक मकसद उसमें डायग्नोसिस बनवाना नहीं लग रहा था। उसमें उनका पर्पस ये लग रहा था कि आपने पेशेंट को काम डाउन कैसे करना है और उसको आगे कैसे लेके जाना है। तो पेशेंट को उसमें थोड़ा सा किया था कि आपकी ये मल्टीपल रीजंस हो सकती है यूपीटी पॉजिटिव आने की, कि कोई और सिस्ट वगैरह हो उसमें आपके बीटा एचसीजी रेज हो तो उस वजह से हो। तो उसने कहा नहीं मैंने स्कैन कराया है, स्कैन पे मेरी प्रेगनेंसी ही है। तो ये कैसे हो गई? मैंने उनसे कहा कि फिर आप जो है ना, हो सकता है आप अपने हस्बैंड के साथ जो है वो आपने फौरी तौर पे कॉन्ट्रासेप्शन ना कोई यूज किया, उनके फौरी इमीडिएटली इफेक्टिव नहीं होता। उसने कहा कि आपको नहीं पता था कि आपने मुझे बताना है कि आपने मैंने इफेक्टिव करना है, फिर उसने मैंने फौरन कॉन्ट्रासेप्शन यूज करनी है। तो मैंने उनसे कहा कि आपका और दूसरी रीजन ये भी हो सकती है कि आपकी प्रेगनेंसी जो है वो पहले से हो, और आपका कहती है आपने यूपीटी करवाया था वो नेगेटिव था। तो मैंने कहा कि आपका यूपीटी नेगेटिव हो सकता है कि उस वक्त फुल्ली डेवलप्ड प्रेगनेंसी ना हो और वो इनिशियल फेजेस में हो, इस वजह से जो है वो उस वक्त नेगेटिव आ गया, क्योंकि यूपीटी पॉजिटिव होते में समटाइम्स फॉल्स एरर आ जाता है। तो उसने कहा कि आपको ये बात पता होनी चाहिए थी मेरी लेप्रोस्कोपिक बीटीएल करने से पहले कि आपने ये सारा कुछ कंफर्म करके मेरी प्रेगनेंसी कंफर्म करके करना था। मुझसे बच्चा चाहिए ही नहीं था, आपने क्यों मेरा इस तरह का ऑपरेशन किया है कि इतने बड़े सेटअप में मैं आई हूँ आपसे कराने के लिए, और आपने जो है ना मेरा ऑपरेशन ऐसा किया है कि मेरा प्रेगनेंसी हो गई है। ये तो रिस्क मैनेजमेंट वाला है जिसमें आपकी गलती है ना कि आप हाँ एक कोई हाँ। मैनिपुलेशन तो यूट्रस पे करते बेसिकली हैं वो और किसी तरीके प्रेगनेंसी से इंक्लूड मैडम नहीं करते काम, हैं। हाँ वो किसी तरीके से काम डाउन नहीं हो रही थी। वो सिर्फ इस बात पे हुई जब मैंने उसको कहा कि आई अपोलोजाइज। जब मैंने यस ये लफ्ज यस। बोला ना, उसने कहा अच्छा ठीक है, अब आप अपोलोजाइज कर रही हैं, लेकिन मुझे तो बच्चा नहीं चाहिए, तो आप मुझे बताएं कि फिर आप मैं अब क्या करूं। तो मुझे अंदाजा हुआ कि ये उस वक्त मुझे अंदाजा हुआ कि मेरे ख्याल है ये यही सुनना चाहती थी कि मैं अपोलोजाइज करूं कि मेरे से गलती हुई है, मैंने आपकी जो सारा वर्क पूरा करवा कर फिर उसके बाद मैंने आपको नहीं लेप्रोस्कोपिक बीटीएल किया, तो अब आपको प्रेगनेंसी होती। मैंने उनसे कहा कि अच्छा मैं अपने तौर पे मैं आपसे अपोलोजाइज करती हूँ कि आपकी ये सारी चीजें सबसे पहले कंफर्म होनी चाहिए थी और उसके बाद करते आपका बीटीएल। तो लेकिन अब अगर प्रेगनेंसी हो गई है तो अब मेरे लिए ये जानना जरूरी है कि अब आप क्या चाहते हो। उसने कहा मुझे तो बच्चा नहीं चाहिए। मैंने कहा कि फिर हमारे पास 5 मेडिकल ग्राउंड्स हैं जिन पे हम अबॉर्शन करते हैं। वो ग्राउंड्स उसको बताने लगे, तो उसने कहा था, अच्छा मेरे पास तो ना तो वो कोई बच्चा मंजूर है, ना तो मेरे पास फाइनेंशियल कोई इशू है, ना मुझे कोई मसला है, मेरा इस तरह का कोई मसला नहीं है, तो फिर मुझे बताएं मैं अबॉर्शन करा सकती हूँ। तो मैंने उनसे कहा कि आप अपने प्रेगनेंसी को कंटिन्यू मेरे ख्याल से तो आपको करना चाहिए, क्योंकि आपका इस तरह का कोई इशू नहीं है। तो उसने कहा कि नहीं नहीं मैं तो अबॉर्शन नहीं कराऊंगी, आप मुझे बस इतना बताएंगे मैं कहाँ से करा सकती हूँ। तो मैंने उनसे कहा कि एक तो ऑप्शन ये है करके क्या क्या तरीके हैं अबॉर्शन कराने के, फिर उसको अबॉर्शन मेथड्स बताए, और उसके बाद उसको कहा कि हमारे पास लीगल जो है ना वो कुछ सेंटर्स हैं जहाँ पे अबॉर्शन कराया जाता है, आप वहां पे भी जा सकती हैं। तो उसने कहा कि आपने लेप्रोस्कोपिकली सारा कुछ मैंने किया, आपके पास एडवांस सहूलतें, तो आप खुद क्यों नहीं मेरा अबॉर्शन करती। तो मैंने इनसे कहा कि मैं कर सकती हूँ, मैंने आपको एक सेंटर बताया, अगर आप वहां से करा सकते हैं तो वहां पे भी, लेकिन ये कि आपकी पूरी प्रॉपर कंसेंट के साथ ही होगा। तो उसने कहा क्या ये जायज होगा कि नहीं होगा। तो फिर मैंने उसको बताया क्योंकि हमारे लॉ के अकॉर्डिंग आपका ऐसा कोई इशू नहीं है, तो ये उस हिसाब से जायज नहीं होगा। तो उसने उसके बाद फिर उसने बस ये इतना ही हुआ था स्टेशन। वैसे अब एक्चुअली ये स्टेशन मैं बताऊं MRCUG 3 के स्टेशन ऐसे ही होते हैं। फर्स्ट टाइम ये FCPS में आया है और इस स्टेशन से ये आई ओपनिंग स्टेशन है कि हमें ये जो टर्मिनेशन लाज हैं पाकिस्तान के या डिफरेंट कंट्रीज के, और या पेशेंट का अपना रिलीजन क्या है, और इसमें जो इंटरनेशनल गाइडलाइंस हैं ये क्या कहती हैं, और अगर आपसे कोई गलती हो जाए उसमें अपोलॉजीज कैसे करनी है, हॉस्पिटल का क्या रोल है, एथिकल कमेटी का क्या रोल है, ये सब चीजें अब हमें पढ़नी पड़ेंगी फॉर FCPS पर्सपेक्टिव। अर्लियर इट वाज ओनली MRCUG MRCPI पर्सपेक्टिव, लेकिन यस ये वेर बड़ा यूनिक स्टेशन है। और इसका जो थीम है ना वो यही थी, एक तो अब आपको अपोलॉजी करनी थी, मतलब रिस्क मैनेजमेंट करनी थी,
और दूसरा ये कि आपको ये जो टर्मिनेशन लॉज है इनका पता होना चाहिए था। वैसे अगर आप नहीं कर सकते ना, तो यू कैन रेफर इट टू सम अदर कोलीग जिसके रिलीजियस बिलीफ इसके अपोजिट ना हो। लेकिन ये स्टेशन नंबर 5 यूनिक है और आई ओपनिंग है। चलो तुम फिर भी पास हो गई, बिकॉज आज मुझे पता है, मुझे 2-4 और भी बच्चों ने फीडबैक्स भेजे। उन्होंने बोला सेशन में तो शायद हम ना आ पाए, बट हम आपको रिकॉर्ड कर देते हैं कि ये जो, और उनकी भी 3rd अटेम्प्ट थी। आई विल शेयर हर ओन वॉइस नोट एज वेल इन द ग्रुप। तो वो भी यही कह रही थी कि शॉर्ट केसेस अगर निकाल लेना, तो अगर एक्सटेंडेड टॉक्स में ऊपर नीचे हो भी जाएं चीजें, तो कंपनसेट हो जाती हैं। तो हाँ, तो आपके शॉर्ट केसेस अच्छे थे, तो छोटे मोटे इश्यूज जहाँ भी आए हैं वो इजीली कंपनसेट हुए हैं। ठीक है, और सबके लिए यही मेरी एडवाइस है कि अपने क्लिनिकल केसेस को सबसे अच्छा स्ट्रॉन्ग रखें, और उस पर तो बिल्कुल कंप्रोमाइज नहीं करना, और ऑब्वियसली बाकी भी किसी स्टेशन पे कंप्रोमाइज नहीं करना। और जो यूनिक स्टेशन हैं स्पेसिफिकली ये एथिक्स के और क्लिनिकल गवर्नेंस के, ये अब थ्योरी में भी आए हैं FCPS के, तो वी कैन एंटिसिपेट के अब ये टॉक्स में भी आएंगे। ठीक है, तो कुछ और कहना चाहें सिद्रा, किसी और स्टेशन पे अपनी ओपिनियन देना चाहें या बताना चाहें? मैडम बाकी स्टेशन यूजुअल से थे, इतना नहीं था। एक ब्लैडर इंजरी का था, वो ड्रिल करनी थी। एक जस्ट एक APLS का मिनट। टिपिकल सिनेरियो था। APLS का उसमें था कि एक इसमें IUD था कुछ उसका, और एक इसमें कुछ डिफरेंट था। मैं आई थिंक ये डॉक्टर तैयबा के साथ था आपका ब्लैडर रिपेयर और रिलेटर का। मैडम एग्जामिनर्स के नाम तो मुझे एक्चुअली नहीं पता, नहीं नहीं क्योंकि नहीं, मैंने आपका इन कोर्स इट वाज विद डॉक्टर तैयबा एंड इट इज अ रिपीट स्टेशन। हाँ जी, ये रिपीट स्टेशन था। बस उन्होंने ना वो ब्लैडर स्पेसिमेन रखा हुआ था, उस पे उनको प्रॉपर रिपेयर करके दिखाना था। मतलब कुछ डिफरेंट नहीं था जो कि कवर ना हुआ हो? नहीं, नहीं मैडम, इसमें नहीं था। एंड पे क्लिनिकल गवर्नेंस का एक क्वेश्चन था, बाकी वो सारे क्वेश्चन वही जो मैडम ने क्लास में करवाए हुए थे ना, वो सेम वही क्वेश्चन थे। और वो क्लिनिकल गवर्नेंस का क्वेश्चन कौन सा था? उन्होंने कहा था कि नेक्स्ट आप इसको प्रिवेंट करने के लिए इसके क्लिनिकल गवर्नेंस इश्यूज को कैसे डील करेंगी। तो वो उनको बताया था कि मैं इंसिडेंट रिपोर्ट करूंगी, रिस्क मैनेजर को इन्वॉल्व करूंगी, फिर नेक्स्ट जो है वो इसकी मॉनिटरिंग पेशेंट की होगी। मैं आई विल मेक श्योर कि मेरी जो कॉम्प्लिकेटेड केसेस हैं वो सीनियर्स ही करें, और स्किल और ड्रिल सेशंस अरेंज कराऊंगी। ये सारा कुछ उसमें मैंने बताया था बस। और APLS में कुछ यूनिक डिफरेंट 8 वीक्स पे डायग्नोस थी? APLS मैडम नहीं, जी वो डायग्नोस थी। उसमें जो मिस्टेक थी मेरी वो ये डायग्नोस इस तरह नहीं, डायग्नोस नहीं थी वो, बल्कि वो यूं था कि उसकी हिस्ट्री सजेस्टिव ऑफ APLS थी, और उसके एंटीबॉडीज नहीं हुई थी। तो एंटीबॉडीज नहीं हुई थी एंड शी वाज प्रेग्नेंट? जी जी, उसकी टिपिकल तो मतलब एक मिसकैरेज की, एक प्री टर्म थर्ड प्लेसेंटल इनसफिशिएंसी की हिस्ट्री थी, उस बेस पे था। और अभी भी जो है ना उसको 8 वीक्स की उसकी, मेरा ख्याल है एग्जैक्ट सिनेरियो मुझे याद नहीं, 8 वीक्स की जो है ना उसकी प्रेगनेंसी थी अभी वाली जो थी। ओके, तो मजेदार उसको केस है, स्टार्ट बताएं से, आगे। हाँ जी, उसको जो है ना वो पहले तो उसकी हिस्ट्री लेनी थी। एग्जामिनर खुद, उस एग्जामिनर कहा कि आप मेरे से हिस्ट्री ले। उनसे पूछा, उनकी तीन तीन उसकी पहले प्रेगनेंसी थी, 4th प्रेगनेंसी थी। एक उसका मिसकैरेज था, एक उसका IUD था, एक उसका प्री टर्म 8 मंथ्स पे बेबी डिलीवर हुआ था। और इस दफा वो कुछ भी नहीं ले रही थी, अभी फर्स्ट टाइम आई थी, और उसने कभी किसी को नहीं चेक करवाया था। उससे जब GP का पूछा तो उसने कहा था उसने मेरे कुछ खून के टेस्ट करवाए हैं जो कि महंगे हुए थे, लेकिन मुझे उनका नहीं पता कुछ भी। तो उसको कंसीडर किया था कि उसने एंटीबॉडीज कराई होंगी। तो एग्जामिनर कहा कि कुछ महंगे टेस्ट जो हुए हैं वो आप क्या पूछना चाह रही थी उससे। तो मैंने उनसे कहा कि APLS और इसके लिए एंटीकार्डियोलाइपिन वगैरह का। तो उन्होंने कहा कि जी वो नेगेटिव है, वो अभी अवेटेड है, वो नहीं हुए इसके। तो कहती है कि आपने क्या डायग्नोसिस बताया। तो मैंने उनके कहा कि APLS का डायग्नोसिस है। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि अच्छा आप इसको कैसे लेकर चलेंगी। तो फिर लोपरिन और मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन उसको स्टार्ट करवाई, और बाकी सारी मैनेजमेंट जैसे मैडम ने क्लास में करवाई थी वो सारी बताई थी उसको। फिर उसने पूछा कि आप इसको कब स्टॉप करेंगे लोपरिन को, और कब नहीं करेंगे, और उसको लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन का पूछा। और उसके बाद पोस्ट लॉन्ग टर्म इसका पूछा था कि लॉन्ग टर्म आप उसको क्या एडवाइस करेंगी। तो मैंने उनको फिर ये कहा था कि लॉन्ग टर्म में ये कहूंगी कि जब भी उसने नेक्स्ट प्रेगनेंसी करनी है, प्री प्रेगनेंसी अपनी काउंसिल वो GP को भी
चेक करवाए, कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट के पास भी आए, और वो बीच में इंटरवल भी प्रॉपर ले, सारा वो जो मतलब इसमें कुछ नया नहीं था। इसमें एपीएलएस का लेक्चर जैसे हमें करवाया गया था, ये बिल्कुल वैसे ही मैंने बता दिया था। और वल्वल ग्रोथ वाला स्टेशन, उसमें क्या था? मैडम वल्वल ग्रोथ वाला तो वो तो टीबी था, वो तो मेरा स्टेशन ही गलत हो गया था, तो मैंने उसको वल्वल सीए बना दिया था। कोई बात नहीं, सेकंड टीडी तो बनता है। टेल मी, चलो बताओ क्या हुआ था। स्नैप एज क्या थी? मैडम एसडी उसमें का एक स्ट्रक्चर डिस्कशन? स्ट्रक्चर डिस्कशन थी मैडम, वो तो उसमें जो है ना पेशेंट की एज जो थी मेरा ख्याल है 35 years ऑफ एज थी, और उसकी जो है ना वल्वल ग्रोथ थी, कॉलीफ्लोर लाइक ग्रोथ थी, अल्सरेटेड थी, और पीवी डिस्चार्ज था उसको। डिस्चार्ज की सारी हिस्ट्री ली थी, ग्रोथ की सीए की हिस्ट्री ले ली थी उससे, वल्वल सीए की हिस्ट्री और रिस्क फैक्टर्स की हिस्ट्री ली थी, और उसकी ना कोई वेट लॉस की हिस्ट्री नहीं थी कुछ, उसके मतलब किसी फैमिली हिस्ट्री भी मेलिग्नेंसी की नहीं थी, कुछ भी नहीं था उसका। लेकिन उसके बावजूद मैंने उसको सीए बनाया, क्योंकि उसकी ग्रोथ जितनी उन्होंने ग्रॉस पिक्चर लाई थी, वो लगाई हुई थी, वो पिक्चर इतनी सजेस्टिव मुझे लग रही थी सीए की तरफ कि उस मेरा ध्यान गया ही नहीं कि वो टीबी हो सकता है। फिर उसके साथ हिस्टोलॉजी की पिक्चर थी, उन्होंने हिस्टोलॉजी की डिस्क्रिप्शन पूछी थी, तो मैं यहाँ पे थोड़ा हो गई थी कि हिस्टोलॉजी की वो पिक्चर मैंने कभी नहीं देखी हुई थी, तो मुझे नहीं पता थी इतनी। क्या था, जाइंट सेल्स होंगे? जाइंट सेल थे और लैंगरहैंस सेल थे, वो इतनी क्लियर पिक्चर भी नहीं मुझे पता चल रही थी। तो मैंने उनसे फिर, अच्छा। उन्होंने कहा कि वल्वल सीए के अलावा कुछ बताओ, कुछ डिफरेंसेस में ही बता दो कि क्या हो सकता है। तो वो डिस्चार्ज था ना, तो मैंने डिस्चार्ज पे उसको कहा कि इसको सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस हो सकती हैं, और मे बी इसको टीबी भी हो सकता है। तो जस्ट मैंने वार्ड्स हो सकते हैं सिर्फ डिफरेंशियल से बताए थे, और मेरा इस पे टाइम अप हो गया था सिर्फ डिफरेंशियल से, इसका डेफिनेट डायग्नोसिस मैं अच्छा, नहीं बता पाया। डॉक्टर मारिया और बुशरा, आपने कैसे इसको अटेम्प्ट किया? Yes, Vulval TB was, matlab ke it was a very good station for me, Vulval TB, and also research. The station I can say about it. Vulval TB, first of all, I took the history of the patient. Then she showed me a picture of the history was there was a hypertrophic cauliflower growth at the vulva. So I don't remember the age and everything, whatever. I remember when she gave me the picture after taking the full history, she had an history of tuberculosis and non-compliant with medication, ATT. So these two was in my mind that it may be a vulval CA. Then I rule out everything, but for a vulval CA and vulval warts, everything, and she didn't have a vaginal discharge in mind. So I was a little bit, how can it be not a vulval CA? So I did ask her, is that growth coming only from the vulva? Then she looked at me, she said, yes, what can you see from that? Then after that, after asking the examination, and then when I reached the investigation, then I said I would like to have a biopsy of this growth. And then then she said, what do you want more? I say, okay, my patient was also non-compliant from the tuberculosis medication. I'd like to have a gene expert test, Montauk's test, etc., etc. Then she told me, then she showed me the histopathology. So maybe my luck, I remembered my microbiology in third year of MBBS. So directly I told her it's a Langerhans giant cell tuberculosis. So then she told me, so you got this histopathology from your graph. Then I got it. Then I told her I stick to my word that it is vulval TB. Then I stopped with vulval CA. I continue with the vulval TB, and then she asked me everything on TB, like the drugs, how many drugs, how to give, maintenance dose, and intensive dose, and for how long, and this how we आई थिंक manage it. सो मारिया, इट वाज नॉट एडेड इन द कोर्स। टीबी पे कोई सेशन No, नहीं no, था। no. So one of my advice, like I've been talking a lot before, but what I wanted to tell everyone, I prepared this third attempt to attempt cases that was not done in the course. I prepared myself like I have to attempt new cases in the exam. How will I manage it? Like at night when I was thinking, if I have a new case, how will I approach it? I was not preparing myself to see the repeats. Like the repeats, yes, you have to do it, because otherwise you will not be able to matlab ke do a format. And the main thing, learn the format, not
not learn the matlab ke things. Yes, learn the format so that you can apply. Yes. After learning the format, then whatever case come in front of you, even though you haven't, I've never seen a patient with verbal TB so far. Mm-hmm. I've never in any course of yours or anywhere in my ward, I've never come across this. But I don't know why. Then I've been able to tackle it, and the examiner was happy with me. Even my short cases, I can't say anything. It's almost like Sidra one. Just one thing I want to add in my gynae short case was that the patient had 22 years back, like the last delivery, she had a vaginal hysterectomy due to prolapse after birth. That one thing, and her abdomen was totally distended from xivisternum till the pubic symphysis, where I couldn't appreciate the mass, and fluid drill was negative, so it was not ascites. And finally it was hydronephrosis. So stage like she has hydronephrosis also, and then this was different. And she asked me the management of that on PV there was valve prolapse. So she also, in the gynae case, she also asked me what will we do for the valve prolapse. I say no. After What was the correcting, after, presenting complaint, Maria? I cannot appreciate. What was the presenting yeah, complaint after the short case? because I don't remember everything. I remember junks. The thing, she had abdominal distension for about 5 months, all of a sudden, and she didn't take any treatment. She was 55 years old, para 8 plus 0, previous SVD, and she had cachextic features. She looked pale, and then she didn't take any treatment so far. She went to some local doctor in Hyderabad or something, and then nothing. And then on the next station that I came to know that CA125 was 63, and after calculating like on ultrasound abdomen and pelvis, then the all the features of showing like malignant features. But before on history also, I had a suspicious of CA ovary, according to Yes. that size of the abdomen, and what she was not moving. Basically this station, I thought I will not clear, because my patient was not moving, was totally non-cooperative. But I made her so comfortable, like Okay. I made her so comfortable with whatever Urdu I know. And the examiner was like noting, like showing me. Even I did breast examination, I did inguinal examination, and what examination that I couldn't do, like I need the patient to sit. So I told the examiner, this is the way that I would like to do this, but due to the privacy of the patient, I'm doing this way. I did the breast examination also. So I said I will do in this way. Like I want to cover, I want exposure, but due to the privacy. But whenever you're saying that, then the examiner knows that you know how to do it. So I think this came along with my plus point. And then I continue like that, and then I went in the next station for the investigation, and then for the management it went on almost the same like Sidra. And even for my obs case, she was IUGR with anemia primigravida. Height of fundus was 28, but according to date was 31 week. So this also was proceeded like this. But one thing, my patient was febrile at that time. The blood pressure was normal. She was, and the thing is like she had one of her the hen that I have to take blood pressure, the right hen, it was swollen, and she had a cannula in that. So the examiner was looking at me. I know she was looking at me. Am I going to take the blood pressure from this hen or not? So thank God at that time I was focusing on my patient. I told that I will take from the other hand, as my patient is in pain right now. So it depends also how you approach your patient on that day also. Yes, you have to tell your knowledge, but so show empathy. And I had only one sheet, so I told the examiner I need 2 sheets. Then she said, okay, you can proceed. As soon as she said, okay, BMI, I told I would like to see the BMI. And then um, there was no weighing machine or something. She said, okay, I tell you the BMI. So somehow like that, I managed my clinical case.
And my next case that I want to talk about the research. So the research, those my advice is like I did my synopsis myself and I did my research myself. So this helped me out, though I am weak in research. Like before, I was studying about the research before the exam. I was concentrating about that, and I was scared that I can't attempt it. But finally, at the exam time, only my synopsis and the research that I made that helped me out to answer to do this station. It was all totally like effectiveness of you have to your HOD asked you to do the effectiveness between balloon tamponade and vaginal packing. So it was like I take ethical committee permission from ethical committee, all the format that I will do for a research, and I put me in myself like I'm doing this research myself. So I tell all the steps I did for my own research, how I will do the sample size, how I will prepare the proforma, what am I going to do the proforma, and अब how बाबा से पहन लो, आयशा से पहन लो. yeah, Sorry. and it's okay. And how am I going to calculate the amount of blood loss, pads and weighing, and how am I going to do all these things? I tell her in detail that I finished the station 1 minute before. So around 1 minute before, then I was looking at her. Then she was just smiling. She said, "Oh," she just knocked her head. So I was scared that did I do right or wrong? But I know I was confident. I was looking in her eyes like I know what I'm telling. If you have something more, you can ask me. And the third station I want to say, which is what was not a repeat, also the teaching station. These station, these new free station was the best part of everything of this exam. It was teaching a house officer about the postnatal ward. The tip that I want to do here, I completed my training 2 years back. I was not in touch in any hospital, like I'm not working, but I go to my parent ward for practice for this exam. But I'm not doing a round or something. So at that time, it is a new station for me. What came into my mind is like when I was GL, when I was GL in my ward, I remembered when I was doing a ward of postnatal, I said the same thing. Said everything that I would have done with a patient, everything, even for the baby. Even we will ask the patient, how are you today? We will check from her record and what was the procedure done. She had about her wound, about her voiding, and even I will ask about her breastfeeding and about the baby. I will check on the baby, and I talked about the baby also. Like I will check, some people here they cover their baby too much, especially in Karachi, it's hot here. So accordingly, according to the thing I did in my clinical, so I approach the new station in this way. My advice is for new station mostly, because new station approach it the way that you did in your training, because it was all new. It was not something I did in the course, but I'm more confident for these station in some way. And बाकी स्टेशन तो बाकी लोग बताएंगे आपको. मुझे नहीं ये नहीं, यू तीन आर वेरी तो गुड. ज्यादा, एक्चुअली मुझे मारिया, ये तीन तो आपका ज्यादा जो प्रो बताती टिप हूँ. है ना, आपका जो प्रो टिप था आपके शॉर्ट केसेस में, वो ये था कि आपका पेशेंट कंफर्टेबल था और इसके मुताबिक आपने अपने एग्जामिनेशन फाइंडिंग्स को मॉडिफाई किया. आप जी जी. स्टैंडर्ड के साथ में चिमटे रहे. और दूसरा ये कि एवरीबॉडी नोज 55 है, एब्डोमिनल डिस्टेंशन है, सडन तो ओवेरियन कैंसर है. बट थिंग वाज दैट कि पेशेंट वाज नॉट कोऑपरेटिव और आपने एक अनकोऑपरेटिव पेशेंट का एग्जामिनेशन किया. तो इट मतलब ये बहुत बड़ी बात है कि हाउ टू टैकल एंग्री पेशेंट, हाउ टू टैकल विद अनकोऑपरेटिव पेशेंट. और इसी तरह जब आपके पेशेंट को फीवर था, सेलुलाइटिस के साइन थे, तो आपने सिर्फ एज ए ओप्स पेशेंट ट्रीट नहीं किया, बल्कि आई कैन इमेजिन मैनेजमेंट में आपने उसको साइट चेंज की होगी, इंस्ट्रक्शन स्पेसिफिक दी होंगी कि यहाँ नहीं दोबारा लगाना, एंटीबायोटिक्स ऐड की होंगी, और सेम आपने बीपी साइट भी चेंज की. तो ये छोटे छोटे टिप्स हैं जो आपके आने वाले Yes, colleagues हैं जो फैब में अपेयर होंगे, उनके लिए ये बड़ी बात है कि आपने yes. पेशेंट को कंफर्टेबल रखना है. और अगर आपको लगता है कि कोई स्टेशन आपके लिए न्यू है, जैसे टीचिंग स्टेशन थो कि वी हैव कवर्ड इट मल्टीपल टाइम विद पैप्समेयर, विद पैसरी, विद लेबर केयर गाइड, लेकिन टीचिंग स्टेशन अगर चेंज भी हो जाए तो टीचिंग फॉर्मेट तो चेंज नहीं होता ना. वही सारी छोटी छोटी I, बातें हैं, आप उसी के अंदाज में उसको लेके चलो.
और तो इंशाल्लाह you can be successful like Maria. And the thing is, like, I went, there was like, I wanted to know, okay, what are the, I was very scared why I said vulval TB. Then after the reviews, and I went to my ward, and then they were saying very few people said about vulval TB. So my professor told me, I heard there were some people good at it. So I got to know, like, at that time I was right. But then she was asking me, what will you tell your juniors about it? I say, only thing, prepare yourself for new station. Don't go in the exam that you're preparing for repeats. Do the repeat. I'm not saying don't do. You do everything. But the thing is, like, your mindset is to be prepare yourself for the most difficult Yes, one, then you will बिल्कुल. achieve that you will achieve. Okay, Maria, what about the uterine inversion station? ये structure Oh, discussion था, scale station था. um, no, there was a skill, somehow like a skill and structured both. There was a pelvis and uterus with a placenta attached, and then the patient was in shock, 70/40 BP, and she had uterine inversion, and I think an R1 came and tell me about it. So I had to manage accordingly. So I started with the resuscitation of the patient, and then I told her, these are from your repeat, like your format that you did. So I just tell her regarding everything about that, and I told about the resuscitation, and then about the uterine inversion. How am I going to manage it? So it went on this way till the Okay, end. It ये was the इसमें same आपको format of डमी थी, your डमी थी उसमें yes, CPR yes, करना था. yes. No. There was no a dummy for CPR. हम्म. The station was basically on uterine inversion. For the maternal resuscitation, I had just to say about it, Okay, or how am I going to proceed, do all the ABC of maternal resuscitation as it was the Dr. like, Hina Shahid. I can remember uterine yeah. inversion in your course. Yeah, but mostly the station was on uterine inversion. Like Mm, three quarter of it was on uterine inversion. You just have to say the first steps of maternal resuscitation. That's all, and then you continue. मतलब कि वो आपको रोके नहीं है. मतलब कि patient mm, revive हो गए. मतलब कि you have to continue. Then accordingly she will ask you. It's all the same as your sessions. हम्म. अच्छा, तो मैं ना क्विकली ओवरव्यू कर रही हूँ, कोई सेशन मिस हो जाएगा तो बुशरा, आई विल इनवाइट यू, आप उसको कंप्लीट करेंगी. ठीक है बुशरा? जी ठीक है मैम, ओके. मुझे समझ नहीं आई कि मैं आपने क्या अपने बेटे से बात करूँ, सॉरी. कोई बात नहीं, आप, मैं रिपीट कर रही हूँ स्टेशन ताकि कोई मिस ना हो. ब्लैडर रिपेयर हमने कवर कर लिया है. ठीक है, ये था. और ये भी रिपीट स्टेशन था. APLS रिपीट था, कवर हो गया. सेकंड स्टेशन. थर्ड में वल्वल ग्रोथ थी. न्यू स्टेशन फॉर आई नो यूर टॉक्स, बट अगेन रिपीट फ्रॉम थीरी. थीरी में हम TB पे बड़ा अच्छा, हमारे 2-3 सेशंस थे और उसमें आराम से, ये अगर आपकी थीरी भी अच्छी है तो कोई बात नहीं, टॉक्स में भी आप आराम से उसी थीरी की बेस पे पास हो सकते हो, जैसे डॉक्टर मारिया ने अप्रोच किया. तो ये भी रिपीट ही था फ्रॉम आई, मतलब क्रॉनिक स्टूडेंट्स. CO ओवरी तो हर दफा ही आता है और सबने ही अच्छा किया है इसको. फोर्थ स्टेशन. फिफ्थ वन एंग्री पेशेंट. इट वाज यूनिक. इट वाज यूनिक. ओके, आई विल ऐड सिमिलर केसेस इन कमिंग कोर्स एज वेल, कि रिस्क मैनेजमेंट कैसे करनी है और एंग्री पेशेंट को कैसे डील करना है. सिक्स्थ स्टेशन अभी डिस्कस नहीं हुआ. बुशरा, आपने, ये स्ट्रक्चर डिस्कशन थी, कुछ कहना चाहेंगे इस पे? मैडम वो इनकॉन्टिनेंस बना था. यूरिनरी फ्रीक्वेंसी अर्जेंसी लिखा हुआ है. नहीं जस्ट यूरिन फ्रीक्वेंसी थी मैडम. तो उससे सिम्टम्स ओके. जब मैंने किए थे ना, फिर उसमें अर्जेंसी, मक्यूरिया, मेडिसिन मैंने सारा कुछ इंटेलिजेंस, ब्लैडर, स्प्लिटिंग ऑफ यूरिन, और मेडिसिन से मैंने 2-3 घंटा हमने सिस्टोफिजिकल एक्सरे लिया था लास्ट मंथ से. तो उसमें हमने बहुत से ना हाँ, उधर बुशरा कि आवाज आपने बहुत कम आ रही है. वहाँ सामान. आ, सिद्रा, चले आप कर ले, बता दें, बुशरा की साइड पे थोड़ा सा मसला है. सिद्रा, अजीम, कैसे पास किया था ये स्टेशन? सिद्रा नहीं है. मारिया,
मैडम कौन सा स्टेशन पूछ रही हैं? स्टेशन 6 यूरिनरी फ्रीक्वेंसी एजेंसी कैसे था ये 17 इसमें अक्टूबर? मैंने ब्लैडर डायरी दी हुई थी और उसमें हर कॉफी इनटेक के बाद और टी इनटेक के बाद उसको अर्जेंसी थी उस ब्लैडर डायरी में। बिल्कुल वही स्टेशन था ये जो आपने हमें यूरोडायनामिक्स में करवाया था। ओके ओके, ब्लैडर डायरी का उसको इंटरप्रेट पेशेंट करना था, जी उसको इंटरप्रेट हाँ करना जी था। जी उसके ब्लैडर डायरी को इंटरप्रेट करना था और उसके बाद उसको मैनेजमेंट बतानी थी। उसकी थोड़ी सी हिस्ट्री भी लेनी थी। शुरू का क्वेश्चन एक मेरे ख्याल हिस्ट्री का था। हिस्ट्री उसकी ये थी कि उसको इनकॉन्टिनेंस बिल्कुल भी नहीं होती, लेकिन उसको बार बार यूरिन आता है, उसको बार बार जाना पड़ता है। तो उसकी मैंने लाइफस्टाइल हैबिट्स पे पूछा था, आपको किस टाइम पे यूरिन ज्यादा आता है, नाइट टाइम आता है, डे टाइम आता है, और कितनी फ्रिक्वेंसी। उसको दिन में 14 बार यूरिन आता था। और उसने जो इनटेक बताया था वो कॉफी कहती, मैं कॉफी बहुत ज्यादा लेती हूँ और जो है ना वो चाय भी बहुत ज्यादा लेती है और रात को सोने से पहले भी वो चाय लाजमी पी के सोती है, तो इसलिए उसको रात को भी उठना पड़ता है। तो बेसिकली उसकी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करवानी थी उसने। और उसके बाद उसको उसने कहा था कि मेडिकली भी क्या मैनेज हो सकता है अगर मैं ना छोड़ पाऊँ ये। तो मैंने उसको बताया था कि आपने फर्स्ट लाइन तो यही है कि आपने फातिमा बहना छोटी सी अलीजा ये जैनब को ले जाओ। तो उसमें उसको फिर बताया था कि आप मेडिकली भी ये होता है अगर रिस्पॉन्ड ना करे लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन को तो उसके बाद। तो उसको फिर एंटी मस्करीन वो जो ड्रग्स थी उसकी वो बताई थी। उसके बाद उसको बताया था कि अल्टीमेट हल इसका सर्जिकल होता है कि आप ओवर एक्टिव ब्लैडर है आपका तो वो जो है ना सर्जिकली भी। लेकिन मैंने उसको कहा था कि आपका बेसिकली तो आपकी हिस्ट्री से पता लग गया कि आपका इनटेक फ्लूइड का ये सारा कुछ ज्यादा है, इसलिए आपको लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की जरूरत है। लेकिन अगर उसके बावजूद भी ना हो तो फिर यूरोडायनामिक्स भी आपका करवाकर यूरोलॉजिस्ट को इन्वॉल्व करके तो आपको मेडिकेशन स्टार्ट करवाई जा सकती है। और उसके बाद अल्टीमेट हल अगर उससे भी रिस्पॉन्ड नहीं करेगा तो फिर आप सर्जरी की तरफ जा सकती हैं। ये सारा उसको एंड तक बताया था, लेकिन उसमें वो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन पे एग्री थी। ओके ओके, चलिए ये तो इजी हो गया। 7 स्टेशन मोनोकोरियानिक डायमनियोटिक फर्स्ट ट्राइमेस्टर की पिक्चर होगी रोल प्लेयर के साथ, तो इसको थोड़ा सा बता दें। मैडम ये पिक्चर थी और रोल प्लेयर था इसमें। उसमें उसने पूछा था कि आप इंटरप्रेट करें, इसकी हिस्ट्री लें। उसकी हिस्ट्री ली थी, उसकी प्राइमरी ग्रेविडा थी और उसकी ओवुलेशन इंडक्शन की हिस्ट्री थी, उसकी फैमिली में भी ट्विंस की हिस्ट्री थी। इसके अलावा कोई सिग्निफिकेंट हिस्ट्री नहीं थी। बस वो शुरू के उसकी गेस्टेशन एग्जैक्ट मुझे नहीं याद कि वो कितने पे थी, लेकिन उसका अर्ली प्रेगनेंसी स्कैन जो था उसमें मोनोकोरियोनिक डायमनियोटिक ट्विंस दिए हुए थे और दोनों वाइबल ट्विंस उसने बताए हुए थे। उससे वाइबिलिटी पूछ ली थी और उसके बाद उसको बताना था कि उसकी प्रेगनेंसी में हाई रिस्क क्या क्या चीजें हो सकती हैं। कि ट्विन प्रेगनेंसी में उसको बताया था कि आपकी जो है ना मोनोकोरियोनिसिटी की एक तो आईयूजीआर भी हो सकता है और डायबिटीज हाइपरटेंशन मैटरनल रिस्क बताए थे सारे पे, फीटल रिस्क बताए थे। फिर उसको बताया था कि आपको जो है ना स्पेसिफिकली मोनोकोरियोनिक की वजह से ट्रैप और ये ट्विन ट्विन ट्रांसफ्यूजन सिंड्रोम भी हो सकता है उसमें। उसको थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दिया था। फिर उसने उसने मुझसे पूछा था कि ट्विन ट्विन ट्रांसफ्यूजन सिंड्रोम अगर डॉक्टर साहब मुझे हो जाए तो फिर आप क्या करेंगी। तो उसको बताया था कि ये अगर हो जाए तो आपकी गेस्टेशन डिपेंडेंट है, आपकी मैनेजमेंट होगी। अगर लेस देन 16 वीक्स पे है तो हम आपका वो कर सकते हैं लेजर एब्लेशन। और अगर 16 के बाद है तो एमनियो वो सेप्टो क्या कहते हैं फीटल फीटल वो मैडम तो सेप्टोस्टमी सही और कहते हैं उसको। एमनियो हाँ रिडक्शन। हाँ एमनियो रिडक्शन और वो सारी चीजें जो है ना वो कर सकती है। तो उसके बाद उसने मुझसे पूछा था कि अच्छा इसके अलावा डिलीवरी का उसने पूछा था कि मैं अपनी घर के करीबी हॉस्पिटल में डिलीवरी करा सकती हूँ। तो उसको मैंने बताया था कि अपने कंसल्टेंट लेड यूनिट में और टर्शरी केयर में ही आपने डिलीवरी करानी है, जहाँ पे सारी फैसिलिटीज उनके टाइम से पहले आपकी डिलीवरी भी हो सकती है। बच्चों को नर्सरी की जरूरत भी पड़ सकती है, कोई कॉम्प्लिकेशन भी हो सकती है, मैटरनल कॉम्प्लिकेशन बताया था डिलीवरी से रिलेटेड सारी। और फिर उसको कहा था कि नहीं आपने कंसल्टेंट लेड यूनिट में ही आपने डिलीवरी करवानी है। उसने फिर मोड ऑफ डिलीवरी पूछा था मेरे से कि मैं आप मुझे किस तरह डिलीवर कराएंगी। तो मैंने उसको कहा था कि क्योंकि आपका पहली प्रेगनेंसी है तो डिपेंड करता है कि फर्स्ट कैफेलिक है या ब्रीच है। और आपकी जो है ना ऑब्स इंडिकेशंस उसको बताई थी कि किस किस बेस पे आपका जो है ना सिजेरियन हो सकता है।
फिर उसके बाद उसने लॉन्ग टर्म फॉलोअप पूछा था कि अच्छा डिलीवरी के बाद, तो फिर उसको कॉन्ट्रासेप्शन का सारा बताया था, ब्रेस्ट फीडिंग का, और बस इतना ही था इसमें, और कुछ भी नहीं था। अच्छा सिद्धराज, जो रोल प्ले के साथ स्टेशन थे उनमें एग्जामिनर भी आपसे क्वेश्चंस पूछ रहा था अलोंग विद द रोल प्लेयर? नहीं मैडम, नहीं, रोल प्लेयर ने खुद ही क्वेश्चंस पूछे थे। और एग्जामिनर सिर्फ आपको ऑब्जर्व कर रहा था? एग्जामिनर ने इस क्वेश्चन में, इस स्टेशन पे सिर्फ मुझसे एक ही क्वेश्चन किया था कि अगर आप इसका ट्विन ट्रांसफ्यूजन या कुछ भी हो सकता है, तो आप जो है ना खुद ही सारा मैनेज करेंगे। तो मैंने उनसे कहा था मैं फीटल मेडिसिन यूनिट को इन्वॉल्व करूंगी। तो उन्होंने कहा कि फीटल मेडिसिन यूनिट जो है वो कहाँ है यहाँ इस्लामाबाद में। तो मैंने उनसे कहा था मैडम मैं बेसिकली लाहौर से हूँ, मुझे इस्लामाबाद का आइडिया नहीं है कि यहाँ कहाँ है। तो उन्होंने कहा था कि चलें ठीक है। ओके, रिसर्च का ठीक चला गया था आपका? जी, रिसर्च का ठीक चला गया था। तो रिसर्च कैसे, मतलब था वो 2 रिसर्च पूरे आर्टिकल्स थे या फॉरेस्ट उनका था प्लॉट? कैसे दिए हुए थे आर्टिकल्स? नहीं मैडम, एक सिनेरियो दिया हुआ था कि यू हैव टू कंडक्ट अ रिसर्च, नहीं, यू हैव टू टेल द रिसर्च मेथोडोलॉजी टू चेक द इफेक्टिवनेस ऑफ बैलून टेम्पोनाड एंड पैकिंग फॉर प्राइमरी पीपीएच। ये रिट्रोग्रेड स्टडी थी कंपैरेटिव? हाँ जी, रिट्रोग्रेड थी ये। तो उसमें उन्होंने पूछा था क्या ये किस टाइप ऑफ स्टडी क्या होगी। उनको मैंने कहा था ये क्रॉस सेक्शनल स्टडी होगी, केस कंट्रोल। तो उन्होंने कहा कि आप इसके लिए क्या क्राइटेरिया होगा, इंक्लूजन एक्सक्लूजन क्राइटेरिया आपका। तो उनको बताया था कि इंक्लूजन में मेरे सारे प्राइमरी पीपीएच के केसेस आएंगे, और फिर उन्होंने कहा कि आपका एक्सक्लूजन क्राइटेरिया क्या होगा। तो मैंने उनसे कहा था कि एक्सक्लूजन में ऑल द प्राइमरी पीपीएच जो कि यूट्रोटॉनिक से कंट्रोल हो गई वो एक्सक्लूड हो जाएंगे। जो जिनको सर्जिकल इंटरवेंशन चाहिए होगी, लाइक टीयर होगा या कोई और कॉम्प्लिकेशन, आपकी पोनी बेबी दूसरे कमरे में पड़ी हुई है, जाओ ले लो। तो उसमें जो कॉम्प्लिकेशंस होंगी वो जिनको सर्जिकल इंटरवेंशन चाहिए वो एक्सक्लूड हो जाएंगे। फिर उन्होंने इसके बाद मेरे से क्वेश्चन किया था कि इसके बाद क्या था, इसके बाद उन्होंने मुझसे पूछा था कि आपकी स्टडी में बाइसिंग क्या होगी। तो नहीं, उन्होंने पूछा था आप इसका डाटा कैसे कलेक्ट करेंगी, क्या क्या। मैंने उनसे कहा था रिकॉर्ड कीपिंग से। अच्छा, उन्होंने कहा कि इसमें क्या आपकी बाइसिंग आ सकती है। तो मैंने उनको बताया था कि हो सकता है रिकॉर्ड प्रॉपर मेंटेन ना हो, प्राइमरी पीपीएच के सारे केसेस इन्वॉल्व ना हो। और एक और क्वेश्चन था उसमें मैंने उनको बताया था कि मैं आईटी को इन्वॉल्व करके आईटी से डाटा कलेक्ट करूंगी बाइसिंग को कम करने के लिए। और फिर उसके बाद उन्होंने कहा था कि डू यू नो अबाउट डबल ब्लाइंड और सिंगल ब्लाइंड। तो उनको डबल ब्लाइंड और सिंगल ब्लाइंड का बताया था डेफिनेशन। और उसके बाद उन्होंने मेरे से पूछा था व्हाट आर द लिमिटेशंस इन योर स्टडी। तो इसमें मैंने पता नहीं लिमिटेशंस में उसका कुछ सिनेरियो था साथ बना उसका लिमिटेशंस का, उसमें साफ पता लग रहा था कि ये लिमिटेशंस। एक तो ये था कि हमारे केसेस जो है ना प्रॉपर रजिस्टर्ड नहीं हो, ये स्टडी रिट्रोग्रेड है, तो इस वजह से जो है ना इसकी ऑथेंटिसिटी और इसके पी वैल्यूज और उसका जो है ना वो एरर आ सकता है, ब्लाइंडिंग का एरर आ सकता है। ये उसकी मैंने लिमिटेशंस बताई थी और बस ये एंड हो गया था। ओके। अच्छा, 12 स्टेशन मिसिंग है, मुझे खुद भी नहीं मिला, याद कर सकते हो? मैडम एक स्ट्रक्चर डिस्कशन ना एक और भी थी, वो भी ओवेरियन सीए था। अच्छा, वो मिसिंग है फिर? हाँ, क्या मतलब दो ओवेरियन सिस्ट के केसेस थे। एक तो शॉर्ट केस था जिसमें सिंगल साइड की उसमें सिस्ट दी हुई थी, और जो स्ट्रक्चर डिस्कशन का ओवेरियन सीए था ना उसमें उसने स्टेज प्रॉपर बताई हुई थी, बायलैटरल सिस्ट थी उसकी। ले लो आप, उसमें बायलैटरल उसकी सिस्ट थी, कॉम्प्लेक्स था, एसाइटिस पॉजिटिव थी। सिटी पे जब सिटी मांगा तो सिटी पे एसाइटिस पॉजिटिव आ गई थी, लिम्फ नोडल स्टेटस उसने सिर्फ नहीं बताया था। ये तो सिमिलर सेशन कल भी था, मतलब 16 अक्टूबर को भी था। 16 वाला मुझे एग्जैक्ट में नहीं पता, लेकिन हमारे डे पे ना 2 स्टेशन ओवेरियन सिस्ट के थे। ओके, तो एक क्या शॉर्ट स्टेज केस थी? का था, एक एसआईटी स्ट्रक्चर पॉजिटिव थी?
एसआईटीज ऐसा, पॉजिटिव थी, हाँ जी, बायलैटरल जो था। जो था ना शॉर्ट केस में, उसमें एसआईटीज नहीं थी पॉजिटिव। ये जो स्ट्रक्चर डिस्कशन में आता है, इसमें एसआईटीज पॉजिटिव थी। इसका आरएम में भी उसने ना वो भी बहुत ज्यादा दे दिया था, CA 1 to 5 ही रेज दे दिया था। और इसमें जो है ना इसमें एज जो है ना उसकी 40 से कम थी, और इसमें बाकी ट्यूमर मार्कर्स उसने सारे नॉर्मल दे दिए थे, और CA 1 to 5 काफी रेज दे दिया था। और एसाइटिस पॉजिटिव थी, सॉलिड सिस्टिक कंपोनेंट के साथ मैच था, और बायलैटरल था। और इसमें जो है ना, और बाकी बाकी और कहीं मैट्स नहीं थे। लिवर रीनल मैट्स का स्टेटस नहीं उसने बताया था। तो ये सिंपल, जैसे ओवेरियन सीए का हमें स्टेशन करवाया था, इसको बस वैसे ही ले गई थी, तो वो ये हो गया था, ये इजी था। स्टेजिंग लेप्रोट में मतलब आरएमआई ज्यादा ही था तो सीटी और फिर स्टेजिंग और फिर बस हाँ जी, ऐसे ही। हाँ जी। ओके, चलो मतलब 12 स्टेशन थे, 2 लिंक थे, तो टोटल 14 हो गए, ऐसा ही था। जी जी। ओके, चलें भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। आप आए, आपने टाइम निकाला। मारिया का स्पेसिफिक थैंक यू, क्योंकि आज उनकी मेड नहीं आई हुई थी तो बच्चों के साथ उन्होंने देखा, लेकिन सिद्रा और किरण के हालात भी सेम ही थे। फैमिली टाइम में को सेक्रीफाइस किया। और फॉर देयर कोलीग्स, ये बहुत बड़ा काइंड जेस्चर है आपका, और थैंक यू वेरी मच। और हम सब ने सीखा बहुत बातें, हम ना भूल जाते हैं, 5 साल हो गए FCTS किए हुए, तो वो यादें भी ताज़ा हो गई कि एग्जाम का रियल ऑरर क्या होता है। और डॉक्टर बस हिरा, मेरा यही। एक क्वेश्चन है। यस, हु इज विद अस? गजाला। गजाला, गजाला 17 को था पेपर। जी जी, डॉक्टर हिरा 17 को था, कराची हम्म, में, जैसे डॉक्टर मारिया का था। हम्म, डॉक्टर हिरा, मुझे जो मेरा फर्स्ट स्टेशन था, जो APLS करके ट्रीट किया था, जैसे डॉक्टर मारिया ने बताया, उस हम्म, स्टेशन को मैं बिल्कुल वैसे लेकर चली। जब मैंने पूरा APLS बताया कि मैं उसको एस्पिरिन दूंगी, हेपरिन स्टार्ट करूंगी, और फिर मैं वो कब स्टॉप हम्म। करूंगी, मतलब वो सारा, जब मैं मतलब एंड तक पहुंची, तो एग्जामिनर ने मुझे एकदम टोक के कहा, APLS वर्क तो अभी अवेटेड है। तो उस वक्त मैं बहुत कंफ्यूज हो गई कि अब मैं क्या करूं। तो मैं मतलब एकदम गड़बड़ा गई वहां पे, मैंने काफी गड़बड़ की, और उसको शायद स्टेशन खत्म होने से 1 मिनट पहले था। तो मुझे अब आपसे जो पूछना है वो ये है कि जैसे कि डॉक्टर सिद्रा ने इसे APLS करके ही किया, और एग्जामिनर ने पूछा भी वैसे ही, अब अगर APLS वर्कअप अवेटेड होता है तो फिर हम इस स्टेशन को कैसे लेके, क्योंकि ये बाकी APLS का क्राइटेरिया फिर मेट ही नहीं बहुत ही करता अच्छा, है। तुमने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है, मेरे माइंड में था बट मैं पता नहीं क्यों भूल गई, और आपको शुक्र है याद रहा। तो देखो, एक पेशेंट जिसको क्लिनिकल फीचर APLS के पूरे हैं दो, एक तो रिकरेंट प्रेगनेंसी हम्म, लासिस और दूसरा 34 वीक से पहले डिलीवर हो गई प्लेसेंटल डिजीज की वजह से, ऐसी हम्म, पेशेंट अनएक्सप्लेन्ड है या एक्सप्लेन्ड है अभी तक, हम्म, जिसका जी जी। APLS का वर्कअप नहीं हुआ? वट यू हम्म। यू विल से, इज इट अनएक्सप्लेन्ड? अनएक्सप्लेन्ड तो नहीं है, क्योंकि नहीं, स्ट्रॉन्गेस्ट रिस्क अनएक्सप्लेन तो फैक्टर नहीं है। तो हमने, स्ट्रॉन्गेस्ट काज तो निकाली नहीं है। कौन सी थी वो? APLS थी, वो नहीं निकाली, लेकिन APLS, उसके 2 क्लिनिकल फीचर पूरे हैं। तो सही। अभी तक APLS क्लिनिकल 2 फीचर्स पूरे हैं, ओब्स की पेशेंट अब करंटली प्रेग्नेंट है, लैब करा नहीं सकते। अब क्या करें? अब क्या करना है? अब हमें बाकी रिकरेंट प्रेगनेंसी लासिस की सारी काज एक्सक्लूड करनी है, जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर सही। या सेकंड में आती है, वो सारी एक्सक्लूड कर लें। फर्स्ट हम्म। ट्राइमेस्टर में क्या आती है? हम्म, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में क्रोमोसोमल एब्नॉर्मलिटीज आ गई, और हम्म, हम्म, कजन मैरिजेस का पूछेंगे, और हम्म, और कौन सी, हम्म। और तो मुझे याद नहीं आ रही। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अगर यूट्राइन एनामलीज, तो फिर सेकंड ट्राइमेस्टर के उसमें आ जाएगा। फर्स्ट सेमेस्टर की काजेज तो बताएं बताएं, चलें, समवन कोई और बताना चाहे? हम्म, चलो मैं दिखा देती हूँ, जस्ट एक मिनट।
हम्म। ये अगर प्रेगनेंसी की काजेज है मोस्ट कॉमन क्रोमोसोमल, वो भी प्रेगनेंसी की मतलब फीटल, और फिर सेकंड और जो मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट है वो थ्रोम्बोफिलिया एक्वायर्ड, जिसमें ये 3 एंटीबॉडीज हैं। अगर स्पेसिफिकली हम बात करें फर्स्ट ट्राइमेस्टर की तो क्रोमोसोमल है। तो हिस्ट्री में क्या था, एज क्या थी दोनों पेरेंट्स की? हम्म, पूछनी एज उसकी चाहिए। मेरे ख्याल में 25-26 थी, वो पूछी थी हिस्ट्री में। पैटर्न पैटर्न ऑफ लॉस। पैटर्न ऑफ लॉस उसका जो फर्स्ट लॉस था वो स्पॉन्टेनियस ही वो बता रही थी, क्योंकि वो एग्जामिनर खुद थी। वो उस हमारा जो वो था वो इस तरह था कि स्ट्रक्चर ऐसा डिस्कशन थी, जैसे एसटी स्ट्रक्चर। होगा। जी हाँ एसटी था। हाँ, जिस तरह स्ट्रक्चर। और सेकंड उसने मुझे कहा कि उसका जो है ना वो अभी मैं प्री तुम्हारी क्लम्सिया जिंदगी की वजह आसान से। करने वाली हूँ। देखो, क्रोमोसोमल प्रॉब्लम्स अनप्रिडिक्टेबल, अगर हो भी तो इन्वेस्टिगेट कराते हैं, ट्रीट नहीं करते, हाँ आउट हो गया। अब इस हाँ पेशेंट को तो ट्रीटमेंट हाँ। देनी है ना, तो आउट हो जी चुका जी। है ये। तो सेकंड उसका जो है थ्रोम्बोफिलिया वो एपीएलएस, ओनली एपीएलएस स्ट्रॉन्गेस्ट अभी तक बचा है। पीसीओ की हिस्ट्री जी होगी तो जी। देखेंगे, वो आपने एक्सक्लूड करनी है। मैडम एक्वायर्ड इसमें थ्रोम्बोफिलिया, इसमें ना मेरा ख्याल है एग्जामिनर बहुत लीडिंग चीजें दे रही थी, उसने खुद ही बता दिया मुझे किसी किस्म का कोई मसला नहीं है, सवाए इसके कि मेरे मतलब थायराइड शुगर सारा कुछ उसने हिस्ट्री में खुद ही बता दिया था कि मुझे देखो ऐसा फर्स्ट कुछ भी सेमेस्टर का नहीं है। जब कुछ भी नहीं है तो फिर ये तो है ना, जिसके 2 क्लिनिकल फीचर्स पूरे हैं और एब्सेंस ऑफ ऑल अदर काजेज जो कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर मिसकैरेजेस करा सकती हैं, तो फिर ये कि पेशेंट जो बस 8 वीक्स पे है, इसको हाँ बेनिफिट जी। ऑफ डाउट दो। शी इज नॉट अनएक्सप्लेन्ड हमारे लिए, क्योंकि हम इन्वेस्टिगेट नहीं करा सकते, इसको वी विल ट्रीट हाँ हर। जी, क्लिनिकल के ये दो जो सजेस्टिव हिस्ट्री पॉइंट्स उसने बता दिए थे ना, इसी पे सस्पेक्टेड एपीएलएस करके उसका ले गई थी आगे। और उसके बाद मैंने तो एंटीकार्डियोलाइपिन वगैरह मांगे नहीं थे, उसने कहा था इसके अलावा कोई स्पेसिफिक मांगने इन्वेस्टिगेशन भी आप नहीं है, कराएंगे, मैंने उसे मांगना तब नहीं कहा था था, मैडम इसके लिए होती है। मांगने भी नहीं है, वी विल जस्ट ट्रीट हर। हम उसको बता हाँ देंगे कि हमारी ट्रीटमेंट का जो डिसीजन है वो मल्टी डिसिप्लिनरी टीम होगा, क्योंकि हिस्ट्री क्लिनिकल है, क्लिनिकल क्राइटेरिया मीट कर रहा है इन द एब्सेंस ऑफ ऑल अदर काजेज जो कि करा सकते हैं मिसकैरेज। तो इसलिए हम इस प्रेगनेंसी के को मिसकैरेज होने का वेट नहीं करेंगे, वी विल ट्रीट यू। अगर आप इसको ट्रीट नहीं करते, इसने फिर मिसकैरेज हो जाना है, होना ही है ना, फिर तो 90% मिसकैरेजेस हैं एपीएलएस में अगर आप तो, हेपरिन और लोप्रिन नहीं देते। तो आप तो इसे बताएं, डॉक्टर लोप्रिन हेपरिन आप दे रहे हो विदाउट इन्वेस्टिगेशन, और इसकी रीजन ये है कि क्लिनिकल 2 फीचर्स पूरे हो रहे हैं और जो बाकी अदर काजेज हैं वो पूरी नहीं हो रही। प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन ये कराएगी आप व्हेन शी विल बी डिलीवर्ड। और अगर इस प्रेगनेंसी में अगर इसका लाइकर ठीक रहता है, यूजीआर नहीं होता और ये चलती है, तो इन इटसेल्फ इज अ प्रूफ कि ये पीएलएस था, बिकॉज शी इज रिस्पॉन्डिंग टू हेपरिन एंड लोप्रिन। डॉक्टर हिरा, ऐसे ही मैंने मतलब इसको डिलीवर करा दिया था, पोस्ट नेटल तक मैंने हर चीज बता दी थी। बस इसका यही इस सवाल का मुझे जवाब नहीं आ रहा था जब उसने मुझे ये बोला बीच में, मतलब अब एंड आ में गया, टोक के कि आ गया, आप खुद समझ हाँ आएगी। ये, हाँ आप ये समझ आए अनएक्सप्लेन्ड नहीं कि है, उसको ये अनएक्सप्लेन्ड में बना। मना किया है हमें, अनएक्सप्लेन अनएक्सप्लेन्ड ठीक है। में तो ये तो अनएक्सप्लेन्ड है ही नहीं, हमने तो इसको बिल्कुल प्रॉपरली उस वक्त मैं एक्सप्लेन किया बहुत है क्लिनिकली। गड़बड़ा गई कि मैं इसको क्या बोलूं अब। तो वो ओके। एक अच्छा, एक एक और स्टेशन था मेरा। अच्छा, ये जो यूरोडायनेमिक्स का था, जो ब्लैडर डायरी दी थी मुझे, जो ब्लैडर डायरी दी थी उसमें मिक्स करके दिया था। उसमें उसको अर्जेंसी भी हो रही थी और उसका जो है ना वो लीक भी हो रहा था, जब वो कफ कर रही थी या जब उसका एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ रहा था। तो कोई बात नहीं, हम तो मिक्स पे ट्रीट करें, यू नो हाउ टू डील हाँ ट्रीट वो देम। उसी उसी हाँ वो उसको इसी तरीके से ट्रीट किया था, दोनों में को मिक्स करके ही। ये थोड़ा डिफरेंस था, तो मैंने कहा मैं आपको बता दूं कि इस तरह स्टेशंस में थोड़ा सा फाइब्राइड डिफरेंस आ वाला रहा था था। कोई, गाइनी में ओवेरियन कैंसर की बजाय सेकंड बैच में फाइब्राइड एनीमिया भी था। नहीं, हम लोगों के पास जो पेशेंट थी, ये जो ऑब्स वाली पेशेंट थी कराची में, उसको एनीमिया भी था। उसने मेरा जो वाइवा लिया था वो सारा एनीमिया पे लिया था। और उसके बाद जो 37 वीक पे उसने मुझे बोला कि अभी तो उसको कुछ भी नहीं है, बस जो है वो 37 पे उसका जो है वो एब्सेंट एंड डायस्टोलिक फ्लो आ गया है, अब क्या करोगी? किस तो पे? वो 37 पे? 37 पे, 37, हाँ 37 पे। तो उस पे फिर मैंने कहा कि इसको मैं 37 पे नहीं, सॉरी 34 पे, सॉरी मैं इसको थोड़ा भूल गई थी। सेक्शन स्टेरॉइड कवर है हाँ ना? मैं, हाँ स्टीरॉइड कवर करके मैंने उसे कहा कि सेक्शन दूंगी। वो एक्चुअली शायद स्टीरॉइड कवर मेरा पहले सुनना चाह रही थी, तो उसने मुझे बस ये बोला कि अब स्टीरॉइड दोगी, तुम पहले नहीं दे सकती थी, बस ये कहा और मेरी बेल बज गई।
तो ओके। इस अच्छा, वैसे स्टेशन तुम में सब ऐसे मुझे हुआ दिल पे था। हाथ रख के बताओ कि ये जो पॉडकास्ट थी जो आपके कोलीग्स ने जो अल्हम्दुलिल्लाह पास हैं, इतनी एफर्ट करके आपके लिए की अरेंज और आपको बताया, कोई फायदा हुआ इसका? बहुत हम्म फायदा हुआ, क्योंकि मैं तो बैठी इसलिए थी आज, मेरे हालांकि ये टाइम वो नहीं था, लेकिन मुझे ये था कि मेरा हम्म पेपर मैंने देखना है कि मैंने कहाँ कहाँ गलतियां की हैं अब पता और चला मैंने कहाँ उसको कहाँ कवर किए करना हैं। है। अब आपको जी अंदाजा जी। खुद ही आप ना दिल में ही आप खुद ही कंपेयर कर लो कि जिन्होंने नहीं पास नहीं, किया वो मुझे 100% बहुत ठीक नहीं थे। लेकिन आपको ना वो जो बहुत अंदाजा हो गया। कॉमन सेंस की चीजें, पेशेंट सेफ्टी की चीजें, टाइम मैनेजमेंट, एग्जैक्टली, छोटी छोटी बिल्कुल बातों पे फेल होते हो, नॉलेज पे नहीं बिल्कुल। होते। मैंने आपको बताया ना, जैसे ऐसे मैं कंफ्यूज हो गई, मैंने उसे कुछ नहीं बताया, जस्टिफाई नहीं किया। मेरा गायनी का नेक्स्ट केस जो है नेक्स्ट वो नेक्स्ट नेक्स्ट क्या अच्छा नहीं सोचा है, हुआ क्या था। करोगे? टेल मी। कोई बनाया है अपने लिए कि मैंने जी, अपने डूज एंड डोंट्स? हम्म मैंने ये बनाया कि मैंने अब ओपीडी जाना है हफ्ते में एक दिन, ओके और शॉर्ट ओके। केसेस पे बहुत ज्यादा ध्यान देना है, और हम्म हिस्ट्रीज लेनी है। जैसे ब्लाइंड वो बस बता रहे थे मरीज बैठा है, इसकी हिस्ट्री लो, डायग्नोज करो। हम्म हमारी ऐसी प्रैक्टिस नहीं थी, तो हम दिमाग में जबरदस्त देखो डायग्नोसिस रख गजाला, के। आप सबसे अच्छी हम्म, बात है अपने अपनी केस अपनी गलतियों को आइडेंटिफाई किया है, सबकी नहीं, अपनी जो आपने की है। ठीक है। जी जी, मैंने दूसरा, अपनी गलतियों को नहीं। हाँ, तो ये आज के 12 केसेस में से बिलीव मी 11 स्टेशन तो हमने कवर कराए हैं। जी। एक मिसिंग था। तो आप तो और पास फिर भी हो जाते हो 10 करके, अगर 2 शॉर्ट केसेस पास हैं तो अपने सिलेबस डॉक्टर हिरा, कंप्लीटेशन, मैं अपने आपको एग्जाम के बताऊं कि स्टैंडर्ड फॉर्मेट को पूरा करके करनी है। ठीक मेरे है। बाकी स्टेशन जैसे डॉक्टर सिद्रा ने बताए अप टू द मार्क थे। मेरे क्लिनिकल केसेस अच्छे हम्म। नहीं थे, और जो मैं अपनी मिस्टेक को आइडेंटिफाई कर पाई हूँ। और कुछ मेरा जो है रिसर्च वाला, बिल्कुल रिसर्च, और जो वो जो मेरा था रिसर्च तो मेरी आपके साथ थी ना। आ, इट वाज अ हाँ वेरी गुड लेकिन सेशन विद मी। वो बहरहाल मुझे याद नहीं था। रिसर्च और टीचिंग स्टेशन वाज बिल्कुल बहुत बुरा गया। और बाकी ये जो बाकी 3 स्टेशन तो ऐसे थे जो पुराने थे, मतलब जो ऐसा लग रहा था कि जैसे डॉक्टर हिना पढ़ा रही हैं, डॉक्टर तैयबा बता रही हैं। तो ओवेरियन वो ब्लैडर, बहुत अच्छे थे। इन्वॉल्वमेंट। हाँ, ब्लैडर तो एग्जैक्ट, मतलब सिनेरियो भी वही था। ओवेरियन का स्ट्रक्चर डिस्कशन का सिनेरियो भी वही था। तो बहरहाल क्लिनिकल केसेस अच्छे नहीं गए, और बाकी भी अच्छा बहुत गलतियां गजाला, मैं एक की बात जैसे। बताऊं, क्लिनिकल केसेस में दोबारा बता रही हूँ, जिसका क्लिनिकल केस खराब और बाकी केसेस अच्छे वो फेल, जिसके क्लिनिकल बिल्कुल सही केसेस कह। पास हैं तभी मैंडेटरी है कि आप पास होंगे। तो आपने वार्ड जाना है, हफ्ते में एक दिन बिल्कुल ओपीडी वाले दिन पेशेंट से बातचीत करो, हिस्ट्री लो, टाइम मैनेजमेंट सीखो। टाइम मैनेजमेंट सीखना ऐसा नहीं होता कि आपने सीख ली, इसमें आपका ब्लड लगता है। घर से निकलना पड़ेगा, खवारी है, बच्चे छोड़ने हैं, बिल्कुल शायद ऐसे जॉब ही। की छुट्टी है या अपने चीजों से छुट्टी है, बैठना पड़ेगा। 1 2 3 पेशेंट से गुजारा नहीं है। अगर टाइम मैनेजमेंट बुरी है तो आपने 20 30 टाइम्स ये प्रैक्टिस करनी है। मैं तो 100 टाइम्स करती थी। मेरी टाइम मैनेजमेंट बिल्कुल अच्छी नहीं थी, और मुझे इस पे बहुत प्रैक्टिस करनी है, मुझे ये और पता आपने है, कल इसीलिए कल मैं के अभी से। कल के पॉडकास्ट में सुना था आपके जो सक्सेसफुल कैंडिडेट हैं उन्होंने कैसे जी जी, कैसे प्रैक्टिस बिल्कुल। की है, नहीं नहीं ऑडियो वो बना के, अपनी वीडियो बना के, अपनी हम्म, वॉइस की प्रैक्टिस, मतलब कैसे कैसे उन्होंने मतलब एफर्ट की है, तो फिर उनको ये सक्सेस मिली है। ये ओवरनाइट कोई मैजिक नहीं है। ठीक है। तो अच्छा, तीसरा बात क्या करनी है, हमने ना कुछ एमआरसीजी के 3 के केसेस आउटलाइन किए हैं जो कि एथिकल इश्यूज पे और रिस्क मैनेजमेंट पे हैं, जो कि एफसीपीएस में शायद अपनी क्लिनिकल लाइफ में आप लोग नहीं देखते, पुअर होते हो इस पे। तो इनको हम स्पेसिफिक अटेंशन देंगे अपने कमिंग कोर्स में। और दूसरा ये कि बड़े बड़े दावे नहीं करने, छोटे छोटे प्लान बनाने हैं। मतलब 3 दिन में क्या करना है, हफ्ते में क्या करना है, और बस उसी वही डेडलाइन सेट करनी है कि हमने विद इन 3 डेज ये करना है, विद इन 5 डेज ये करना है, और ये खुद ब खुद लंबा सा रास्ता फैब तक का कवर हो जाएगा। और लास्ट जो मेरा और आपके सब कोलीग्स ने जो आपको कहा है वो ये है, प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस। खुद ही प्रैक्टिस से धक्के खा खा के भी सीख सकते हो। मतलब प्रैक्टिस इतनी बड़ी चीज है कि कोई ना भी सिखाए तो आप खुद खुद भी सिखा देंगी चीजें आपको, हालात, आप, जमाना। तो ये तो आपने नहीं छोड़नी। और फिर इंशाल्लाह इंशाल्लाह मैं बहुत होपफुल हूँ कि आप सब जो अब रह गए हैं वो नेक्स्ट टाइम में तो उन पे वाजिब है कि वो पास हो। ठीक है। इंशाल्लाह 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 इंशाल्लाह। तो आपने ना ये जो डीपी है मोबाइल की, इस पे ये वाली लगा लो कॉन्वोकेशन की, येलो गाउन की ना पिक्चर, अपना खुद पहन के, खुद अपना एआई से इमेज बना के कि आपने ये कॉन्वोकेशन अटेंड करना है विद योर पेरेंट, विद योर किड्स, और ये डिग्री लेना है और अर्ली लेनी है।
ठीक है, और फैब में ये अपनी सारी जिंदगी के जो विशियस सर्कल है ये एग्जाम देने का, ये खत्म करना है। ठीक है, और ये हो सकता है। इन लोगों ने भी तो किया है ना, जो आपके लिए ये पॉडकास्ट अरेंज कर रहे हैं, बता रहे हैं। ऐसा इतनी एफर्ट कोई भी नहीं करता। पेपर पास होने के बाद वो कोई भी नहीं कहता और कि आओ ये लोग आ रहे हैं, इनकी बड़ी बात है। और इवन पे कोर्स खत्म होने के बाद भी कोई कोर्स वाले आपको पूछते भी नहीं है, हार्ड लग या बेटर लग कह के जान छुड़ाते हैं। बट स्टिल मुझे बड़ा दुख होता है कि आपने एक कोर्स लिया और फिर ये समवेयर आपके मेंटोर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप क्यों पास नहीं हो गए। तो मैं इसको अपने शोल्डर पे प्रेशर फील करती हूँ, और आई एम गिविंग माई बेस्ट कि ये पॉइंट्स हैं, ये इम्प्रूव कर लो तो ये हो सकता है। बाकी यू पीपल नो एवरीथिंग। ठीक है, सो इंशाल्लाह आप सब भी थैंक यू डॉक्टर ज्वाइन हिरा, करें। मैं आपका बहुत फिर थैंक यू कहूंगी। वाकई मैं 2 दिन पहले यही बात सोच रही थी कि ये वाहिद ऐसी मेंटोर है जो पूछ रही है कि भाई क्या गलतियां की, क्या हुआ। तो उसके लिए मैं बहुत मतलब मैं जितना भी आपको थैंक यू कहूँ कम है। चलें, कोई बात नहीं, मैं ये चाहती हूँ कि बस आप पास हो जाए। इंशाल्लाह ओके, इंशाल्लाह हम बहुत कोशिश करेंगे ओके, नेक्स्ट टाइम। ओके, इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। ओके, ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। जज़ाकल्लाह। सिदरा, तुम्हारे मैसेजेस पढ़ रही हूँ। आई कैन अंडरस्टैंड, फैमिली टाइम है, मेरे बच्चे खुद भी बड़े डिस्टर्ब हैं, लेकिन ये जो सेशन है ना, ये बड़ा जरूरी था लेना। ओके, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज।